I don't come here as a journalist seeking masala. I come here as a messenger of the people of India. Focusing and debating about governance is more important, far more important than focusing and debating about politics. आज पहली बार कोई आदमी ऐसा मिला है जो हमसे गवर्नेंस पूछ रहा है, and we are really enjoying talking to you. A video of yours circulates where you said that by 2024 this will be done. मैं यमुना साफ कर दूंगा. नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं. यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी. No, I agree. I admit. 3 बड़े वादे किए थे मैंने, वो मैं नहीं कर पाया. आज एडमिट कर रहा हूँ आपके शो पे. उसके बाद पिछले 2 साल से आप देख रहे हो, कभी ये जेल में, कभी मैं जेल में, कभी मनीष सिसोदिया जेल. When it comes to the Mohalla Clinic, the anti-corruption branch says that nearly 65,000 ghost patients were found. मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक आपको डेटा दे देता हूँ. This is coming from Justice Mishra, and you've consistently said that the tanker mafia is done. But then Justice Mishra goes on to say that there is still a large number of tanker mafias that are already out there. अभी भी 3-4% दिल्ली ऐसी है जहाँ पाइपलाइन नहीं है, वहाँ टैंकर से अभी भी जा रहा है. What exactly is the logic behind freebies and how do they result into an economic output for the country? बड़े अच्छे क्वेश्चन पे आए हैं हम लोग. पूरे देश में हमारी अकेली सरकार थी जिसने ऑटो वालों को, टैक्सी वालों को, लेबर को 5-5 हज़ार रुपए उनके अकाउंट में डलवाए. They are bound to go out of business today or tomorrow, whether that's a pujari or a guitarist or even the sound recordist over here. If these people tomorrow stop making money because the industry is evolving, the government cannot come down and give them pocket money because it's just not viable for the state. सरकार होती किस लिए है यार? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, what does a women empowerment mean? So I think education and freedom. बस. And healthcare. असली एम्पावरमेंट पैसा होता है बहुत, बाकी सब थ्योरेटिकल है. आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के चोंचले हैं. Why does it take so much time, sir? पिछले 10 साल तक क्यों नहीं हो पाया ये? What nonsense is this? ठीक करते हैं ना, जैसे आपने बताया करेंगे इसको. एक सरकार एक स्कूल नहीं चला सकती, वो देश क्या चलाएगी यार? एक स्कूल तुमसे नहीं चलता. In this politics, the collateral damage happens to the people of India. How do we fix the system which will not result into this clash? Because after all, we're governing the same people of India. At the end of the day, it's politics that is guiding everything. I have no idea how that makes sense, sir. I'm so sorry. Can you please explain? Before we move on, let me take a moment to thank Odoo for supporting our podcast. If you're a business owner, you know how tough it can be to manage customer relationships. Not too long ago, my team also faced the same challenge. Leads were coming in from emails, social media, and direct messages, but everything was chaotic. And we were losing out on valuable opportunities in spite of having customers who were willing to pay for a product. So what we learned is that a messy CRM system can mean lost leads and missed sales opportunities. But here's where Odoo's CRM can help you out. Odoo's CRM is a powerful tool that makes managing customer relationships and sales pipelines super easy. With Odoo's centralized lead management, all your leads are in just one place. So no more jumping between platforms or hunting for old conversations at all. Every lead is neatly organized in a Kanban view where you can see all the key details like customer name, contact, priority, and activity scheduled at a glance. It also simplifies scheduling and follow-ups. So whether you need to make a call, set up a meeting, or send an email, you can do it directly with the chatter within the task. Odoo's email templates and integration with tools like ChatGPT make writing emails an easy job, and all your conversations are neatly organized under each lead task. Odoo also gives you a real-time insight into your sales performance and revenue forecasts. This helps you make data-driven decisions, which is a $1 million asset. And the best part is, your first Odoo application is free for life with complete hosting and support. So if you find this useful, check out the link in the description and download Odoo now. Good morning, everyone. Good morning. Hi. My name is Ganesh Prasad and welcome to the Indian Business Podcast. This is my first political roundtable. So I'm very excited and nervous both at the same time because I've got 4 political stalwarts over here. And before we get started with the podcast, I just have 3 things to tell you which will help us set the premise for this podcast. The first thing is that we believe that focusing and debating about governance is more important, far more important than focusing and debating about politics. So today, all the questions that we have are strictly based on governance, and we will try to avoid politics as much as possible. Because what we've come to understand is that the political battles are endless. But at the end of this political battle, the only collateral damage that happens is to the people of India. So we are here to seek answers in such a way
that we understand governance better and we just keep away the politics. Secondly, sir, I don't come here as a journalist seeking masala. I come here as a messenger of the people of India. And I'm seeking answers to understand the challenges that you face, because we know for a fact that governing the capital of India is no easy task. So sometimes I may sound like a skeptic, but that's not to pinpoint. That is to understand what are the challenges so that we can look forward to a better India more strategically than just through information that are quite misleading. And thirdly, while you give your answers, if you could use stories and data to help us understand your perspective better, that would be great, because stories help us cut through the technicalities and data gives us credibility to the statements that you're making so that people can seek a better understanding of your perspective. If that's clear, shall we get started? And because guys, we have a restriction of time, we have only 1 hour. We'll cover few subjects, but we'll go so deep so that whatever we are covering, we can do justice to the subjects that we have right now within the limitation of time. So the first question that I have is about the water problem of Delhi. I spent the past 4 days over here and I saw that people were extremely happy that they are finally getting water. And I spoke to the cab drivers, the rickshaw drivers, the maids in Preet Vihar, and all of them had similar things to say that पहले उनके घर में पानी नहीं आता था, but आज उनके घर में पानी आ रहा है. Water being such a basic necessity is something that is sort of a luxury in large parts of India. But in Delhi, also it has been luxury for a large segment of time. So what exactly has been so special about your governance that from 2013 to 2024, you have turned water from a luxury to a necessity, sir? It's not just about water also. अगर आप देखें तो आज हमारा पूरा सिस्टम बेसिक नेसेसिटीज़ से जूझ रहा है. 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए. किसी भी देश के इतिहास में 75 साल कम नहीं होते. अगर हम देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान, जर्मनी कम्प्लीटली डैमेज हो चुके थे, ख़त्म हो गए थे. जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब पड़ा था, सब कुछ तहस नहस हो गया था. एंड विद इन परहैप्स अ मैटर ऑफ 2 or 3 decades they became one of the most flourishing economies in the world. हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, 1950 में संविधान आया और आज 75 साल हो गए हमारे देश को. हमारे देश के अंदर आज बेसिक सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है. तो 75 साल में किया क्या? मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग वट एवर हैज़ बीन अचीव्ड सो फार. काफ़ी कुछ हुआ भी है, पर काफ़ी कुछ नहीं हुआ है और बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं हुई हैं. दुनिया पता नहीं कहाँ की कहाँ जा रही है इनोवेशन में, रिसर्च में. हम कहाँ रह गए? तो पानी की जो आपने बात की, जब हमारी सरकार बनी थी मुश्किल से 40-50% दिल्ली में पानी पाइप्ड वाटर सप्लाई था. पाइप पहुंचते ही नहीं थे उनके घरों तक, तो वाटर टैंकर से पानी जाते थे. वाटर टैंकर से जब पानी जाते थे तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा माफिया था वाटर टैंकर्स का. और पुरानी इमेजेस अगर आप उठा के नेट से देखेंगे तो एक वाटर टैंकर है, उसमें से मल्टीपल पाइप्स निकले हुए हैं. फिल्में भी बनी हैं इसके ऊपर. मेरे ख्याल से अभी एक फ़िल्म देखी थी, कौन सी थी वो, फुकरे 3 जो आई है, उसमें दिखा रहे हैं कि दिल्ली के वाटर टैंकर माफिया का दिखा रहे हैं, शायद वो उस ज़माने में. तो वो वाले पिक्चर्स होते. हमने पहला काम तो ये किया कि ही वाज द वाटर मिनिस्टर, नाउ शी इज़ द वाटर मिनिस्टर. मे बी दे विल थ्रो मोर लाइट ऑन योर क्वेश्चंस, बट आई विल जस्ट थोड़ा सा मैं पर्सपेक्टिव दे देता हूँ. हमने इतना किया कि हमने पानी की पाइपलाइन जगह जगह डालनी चालू की. दैट इज़ अ बेसिक थिंग. तो लगभग 4000 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन हम लोगों ने डाली है. अब ऑलमोस्ट 95-97% दिल्ली में पानी की पाइपलाइन पहुंच गई है. अभी भी 3-4% दिल्ली ऐसी है जहां पानी की पाइपलाइन नहीं है, वहाँ टैंकर से अभी भी जा रहा है. बिकॉज यू मीट सम पीपल हुल से टैंकर से पानी आता है. तो 3-4% अभी भी दिल्ली है जहाँ पानी के टैंकर से पानी जाता है. सो दिस वाज द फर्स्ट चैलेंज कि पानी सब जगह पहुँचे. नाउ दिल्ली इज़ द कैपिटल सिटी और हमें इस कैपिटल सिटी को कैपिटल के लेवल पे ही लेके आना है. देश की एक तरह से गौरव है हमारा दिल्ली जो है. तो केवल पानी की पाइपलाइन पहुंचाना इम्पोर्टेंट नहीं है, 24 घंटे पानी आना चाहिए और साफ़ पानी आना चाहिए. अभी हर
गली मोहल्ले हर घर के अंदर जब आरओ लगे हुए हैं या फिल्टर लगे हुए हैं और उससे पानी पीते हैं लोग, इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सीधे जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में आप नल खोलो और पानी आता है और आप सीधे ग्लास भर के पानी पी सकते हो। दैट इज़ आवर एम कि वो अचीव करना है हम लोगों को। अभी इसकी शुरुआत हो गई। अभी अभी मैं पिछले हफ्ते अबाउट अ वीक और 10 डेज़ बैक मैं राजेंद्र नगर विधानसभा में पांडव नगर एक कॉलोनी है, वहाँ पे मैं 24/7 प्योर वाटर सप्लाई की इनॉग्रेशन करके आया हूँ। सो इट हैज़ स्टार्टेड, द पायलट हैज़ सक्सीडेड। नाउ दिस विल इन द नेक्स्ट 5 years दिस विल स्प्रेड ऑल अक्रॉस दिल्ली और लोगों को साफ़ पानी मिलेगा, 24 घंटे पानी मिलेगा। और अब ये पानी आएगा कहाँ से भाई? पॉपुलेशन तो 2.5 करोड़ है, तो जब टैंकर से पानी जाता था तो लोग पानी बहुत कम मिलता था लोगों को। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ 24 घंटे पानी आएगा, नल से पानी आएगा, साफ़ पानी आएगा, तो ऑब्वियसली पानी आएगा कहाँ से? एडिशनल पानी तो चाहिए ना। तो वो पानी कहाँ से आएगा वो ये एक्सप्लेन करेगा। इसने पूरा, ही इज़ एन आर्किटेक्ट, सतेंद्र जैन, प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है ये, और इसने पूरा प्लान बनाया हुआ है। अभी दिल्ली में 1000 जब हमारी सरकार बनी थी 900 MGD पानी दिल्ली में आता था। ओके। ये 900 MGD पानी सालों सालों से आ रहा है, मतलब हमारे से भी पहले 900। पॉपुलेशन जो है वो बहुत बढ़ गई है, पानी की प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ी है। तो पॉपुलेशन बढ़ गई है तो पानी की डिमांड भी बढ़ गई है, तो पानी आएगा कहाँ से? तो हमने ग्राउंड वाटर करके 900 को 1000 तक तो ले आए हैं पिछले 10 साल में, बट दैट्स नॉट सफिशिएंट। दिल्ली की पानी की रिक्वायरमेंट 1250 to 1300 MGD है, तो बाकी पानी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो ये बताएं। देखिए, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। इसमें हम दो तरह से बात करें। एक तो वाटर जो हमारे को अवेलेबल है, 1993 में वाटर एग्रीमेंट हुआ था, तो जितना पानी 1993 में दिल्ली को मिलता था, आज 32 ईयर्स के बाद भी उतना ही मिल रहा है। पॉपुलेशन हमारी 1.5 गुना 2 गुना हो गई है, तो पानी तो 1.5 2 गुना होता तो काम चल जाता। दूसरा, जैसे सर ने बताया कि भाई हमने बहुत सारे अलग अलग पाइपलाइन डाल के अवेलेबिलिटी और जगह बढ़ा दी है। तो सबसे पहले जो बताना भूल गए सर, कि हमने जो 20,000 लीटर पानी फ्री किया, उससे क्या हुआ? वाटर कंजर्वेशन हुआ। तो महीने में जो 25,000 करते थे, 30,000 करते थे, अब वो 18,000 17,000, क्योंकि वो 20 फ्री हो जाए, 20 से नीचे लेना हमने चाहते ये हैं। कर दिया कि 20,000 लीटर तक पानी फ्री है। 21,000 होते ही सारे का पैसा लगेगा, 1,000 का नहीं लगेगा, 21,000 होते ही पूरे 21,000 का। तो पीपल हैव स्टार्टेड कंजर्विंग वाटर एंड ब्रिंगिंग इट डाउन टू बिलो। दिल्ली में ऑलमोस्ट रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ऑलमोस्ट 80% लोगों का वाटर बिल फ्री आता है, बिकॉज ऑफ अगर हम ये 20,000 की कैपिटल का कैप ना लगाते तो मैक्सिमम का बिल 20,000 से ऊपर जा रहा होता। तो उससे पानी कंजर्व हुआ, पहली चीज़। दूसरा क्या था कि सर ने जो बताया 900 MGD की सप्लाई थी, वो मैक्सिमम थी, वो रेगुलरली नहीं थी। रेगुलरली 800 820 850 तक जाता था, 850 से ऊपर नहीं जाती थी। कभी कभी 900 जा सकती थी, बट कभी भी 850 855 से ज़्यादा गई नहीं। तो हम लोगों ने इसको अपनी सरकार के अंदर 1,000 के करीब स्टेबलाइज कर लिया है। कभी कभी 1,020 भी जाता है, 1,025 भी जाता है, पर 1000 से ऊपर जा रहा है। यानी आपने 15% 20% सप्लाई बढ़ाई, 15-20% हमने कंजम्पशन कम की, तो उससे अवेलेबिलिटी बढ़ी है। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया कि भाई मैक्सिमम की बात कर लेते हैं ना, हम लोग कहते भाई अभाव में जीने से अच्छा एक्स्ट्रा में चलें। तो पानी के लिए क्या किया, जैसे यमुना फ्लड प्लेन है, वजीराबाद के अपस्ट्रीम में ड्रिंकिंग वाटर जो है अंडरग्राउंड काफ़ी अवेलेबल है, तो उसमें हमने बोर किए, तो उससे पानी बढ़ाया है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर दुनिया की सबसे बड़ा हम ग्राउंड वाटर से, दिल्ली के अंदर काफ़ी जगह पे पानी अवेलेबल है, बट वो सलाइन वाटर है, पीने लायक नहीं, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। जैसे इनकी असेंबली है आतिशी जी की, कालका जी, काफ़ी ऊपर पानी है, बट पानी सारा इस लायक नहीं है, थोड़ा सा उसको साफ़ करना है। तो हमने सबसे ज़्यादा दुनिया के टेंडर्स किए हैं, पीछे अब कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो पानी को ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो कि सलाइन का मतलब खारा पानी है, पीने लायक नहीं है, उसको आरओ करके हम सप्लाई कर देंगे। और उसके अंदर हमें नेटवर्क नया नहीं बनाना। सबसे बड़ी बेनिफिट क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कॉस्टिंग बहुत कम आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है सारा, हम लोकली निकालेंगे, उसको लोकली आरओ करेंगे, टैंक में डाल देंगे, यूजीआर में डाल देंगे, ये एक 1 पॉइंट है। दूसरा क्या है, जैसे हमारे 1000 MGD हम पहुंच चुके हैं, हमारा अल्टीमेट एम है 1500 तक की कैपेसिटी बनाएंगे, सो दैट सप्लाई अगर हम करेंगे, हमारी डिमांड है 1250, तो हम अपनी कैपेसिटी को 1500 लेके जाएंगे। हम 80% कैपेसिटी पे काम करें नॉर्मली, कभी इमरजेंसी है तो ज़्यादा पे भी कर लें,
तो पानी को हम 24/7, जो सर का विजन था, उन्होंने तो कहा था भी मुझे नहीं पता, 24 घंटे पानी किसी तरह करके दिखाओ, बिजली कर दी थी हम लोगों ने, तो पानी को भी 24 घंटे हम आने वाले कुछ समय के अंदर दिल्ली के अंदर करके दिखाएंगे। इसके साथ एक दूसरा पॉइंट और भी चल रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। हम जितने भी हम पानी को साफ़ करते हैं STP से साफ़ कर रहे हैं, दिल्ली में बहुत सारी लेक्स हमने बना दी हैं ऑलरेडी। STP से साफ़ करने के बाद हम उसको लेक्स में डाल रहे हैं, लेक से वो रिचार्ज हो रहा है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक बहुत ही आपको इनोवेटिव चीज़ बताते हैं कि पानी को हमने STP में साफ़ किया, उसके बाद फार्म हाउसेज हैं दिल्ली में बहुत सारे। STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो आपके घर का सीवेज वहाँ जाता है, वो साफ़ हो जाता है, और आज की डेट में वो पानी को हम साफ करते हैं और यमुना में बहा देते हैं। तो we should use that water। उसको हम क्या कर रहे हैं, तो उसको यूज करके हम रिचार्ज करेंगे दिल्ली के अंडरग्राउंड वाटर। तो रिचार्ज करने के हमने कई तरह निकाले। एक तरीका है हमने लेक्स बनाई हैं। सेकंड हम क्या कर रहे हैं, जो बड़े बड़े दिल्ली के अंदर फॉरेस्ट हैं, बड़ी बड़ी ग्रीन लैंड्स हैं, उसके अंदर हम उसको यूज़ करेंगे, पानी को करेंगे यूज़, लॉन में डालेंगे, जैसे पेड़ों के लिए यूज़ करेंगे। तीसरा हम कर रहे हैं फार्म हाउसेज को दे रहे हैं, और फार्म हाउसेज को हमने नया तरीका निकाला है, पर मंथ चार्जेस, फिक्स चार्जेस। अब जितना मर्जी यूज़ करो, मतलब हम पार्टनर बन गए। मेरा पानी जो मैं यमुना में फेंक रहा था गंदा पानी, वो रिचार्ज होगा, रिचार्ज होने के बाद दोबारा से काम होगा। तो दिल्ली का ग्राउंड वाटर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा इन सारी चीज़ों से। मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक आपको डेटा दे देता हूँ। ट्रांस यमुना एरिया जो है, यमुना पार जिसको हम बोलते हैं, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, वहाँ पे वाटर टेबल बहुत हाई है। आप वहाँ पे खोदो 3-4 फुट और आपको पानी निकल आता है। बेसमेंट्स बनाने मुश्किल है वहाँ पे, बिकॉज बेसमेंट बनाते ही पानी निकल आता है। तो एक तरफ तो हम पानी पे बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ पानी की किल्लत है। वहाँ की दिक्कत यह है कि वहाँ अमोनिया बहुत ज़्यादा है ट्रांस यमुना एरिया में, पानी में। तो इसको हमने एक्सपेरिमेंट किया। हम बड़े बड़े डीअमोनाइजेशन प्लांट्स तो हैं, हम छोटे डीअमोनाइजेशन प्लांट्स कहीं से लेके आए, उनको हमने पायलट बेसिस पे कुछ जगह लगाया, एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल। वो डीअमोनाइजेशन के बाद जो पानी निकल के आया वो पीने लायक था, मैं खुद पी के आया, साफ़ पानी था। तो लगभग वी हैव आइडेंटिफाइड 2600 पॉइंट्स, जहाँ पे दोज पॉइंट्स हैव आल्सो बीन, वहाँ पे बोर करके पानी निकालेंगे, डीअमोनाइजेशन प्लांट लगाएंगे, और उस पानी को फिर UGR में ले जाएंगे। तो 200 MGD पानी हमारा यमुना पार से आएगा। 100 MGD पानी यमुना का जो फ्लड प्लेन है, वहाँ पे जो इन्होंने कहा कि यमुना में बारिशों में पानी बहुत साफ आता है, और वो पूरा फ्लड प्लेन ऑटोमेटिक रिचार्ज होता है। ईस्ट दिल्ली पूरी ऑटोमेटिक रिचार्ज, हमें इसमें रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। बारिशें जब आती है तो यमुना उसको रिचार्ज कर देती है। 100 MGD पानी हम यमुना के फ्लड प्लेन से निकालेंगे। और साउथ दिल्ली में बहुत बड़े बड़े एक्विफर्स हैं जो इन्होंने बताया इनके एरिया में, जहाँ पे मतलब देयर आर एक्विफर्स इज एन अंडरग्राउंड काइंड ऑफ अ लेक। वहाँ पे पानी सलाइन है, वहाँ पे 200 MGD पानी वहाँ से निकालेंगे, तो वो पानी को RO से ट्रीट करके हम उसको साफ, तो 1500 MGD पानी 1500 करने का प्लान इन लोगों का है। सर, वन क्वेश्चन दैट आई हैड इज, और ये मैंने पिछले 4 दिन में ना सब लोगों से बात किया, तो उन्होंने मुझे यही चीज़ बताया कि पानी आ रहा है हमारे पास, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनके टैप से नाले का पानी आ जा रहा है, गंदा पानी आ रहा है। कम आता है, पूरे दिन में घंटा आता है, 2 घंटा आता है, फिर ये टंकी भर लेते हैं, घर में खूब सारी बाल्टियां भर लेते हैं, फिर जब अगले दिन आता है तो पिछले दिन वाला पानी उंडेल देते हैं। तो वो वेस्टेज भी है। तो 24 आवर वाटर सप्लाई, सर्टेन वाटर सप्लाई, साफ वाटर सप्लाई आएगा तब। नहीं सर, ये लोग बोल रहे हैं टैप से कभी कभी नाले का पानी आ जाता है। नहीं, नाले का नहीं, वो सीवर और पानी की पाइपलाइन कई जगह मिक्स हो जाती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं। कहीं लीकेज हो गया, वो लीकेज जो है मान लो सीवर, तो वो पानी उसमें मिक्स हो जाता है। सर, हाउ डू वी फिक्स दिस सर? दिस इज फिक्स्ड। ये अब तो टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, यू डोंट नीड टू, आपको सारी सड़क तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर से मशीन घुमा दीजिए और आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली किस लोकेशन के ऊपर लीकेज है, उसको फिक्स कर दीजिए। बिकॉज सर, जब मैंने इनसे बात किया ना, इसमें एक और प्रॉब्लम ये निकल कर आता है कि उन्होंने बोला कि जब कभी कभी इनको अगर नाले का पानी दिख जाता है तो उसके दे गेट स्कैर्ड एंड देन इवेंचुअली दे हैव टू स्पेंड 6,000-7,000 रुपीज इनटू गेटिंग एन एक्वागार्ड। आई एग्री। एंड सो ये वाली प्रॉब्लम्स कुछ एरियाज में हैं गंदे पानी की। गॉट इट। ठीक है सर। सर, one question that I had is, this is coming from Justice Mishra, and you've consistently said that the tanker mafia is done. But then Justice Mishra goes on to say that, there is still a large number of tanker mafias that are already out there. There's a lot of leakage that's happening, because of which time and again during summer, Delhi suffers from lack of water. तो जैसे मैंने बताया कि टैंकर माफिया नहीं कहूँगा मैं, अब सरकारी टैंकर चलते हैं। Okay. सरकार टैंकर भेजती है, कोई माफिया नहीं है।
मतलब उस सरकारी सिस्टम के अंदर जैसे ड्राइवर जा रहा है, उसने बदमाशी करके कहीं पे टैंकर बेच दिया, पानी तो टैंकर से फ्री जा रहा है, लेकिन उसने बदमाशी करके कहीं पे पैसे ले लिए, उतना सिस्टम के अंदर वो हो सकता है। Okay. लेकिन अब कोई प्राइवेट टैंकर माफिया जो पहले ज़माने के थे कि पूरी दिल्ली में टैंकर माफिया चल रहे हैं, वो सारी आपको ना तो इमेजेस देखने को मिलती है ना स्टोरीज देखने को मिलती है। पर आई राइट इन द बिगनिंग आई एडमिटेड दैट 4 to 5% अभी भी दिल्ली में टैंकरों से पानी जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जब गर्मियाँ आती हैं तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं टेल एंड वाले जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पे भी फिर पानी जो है वो टैंकरों से भेजा जाता है। तो इन दोज समर हीट मंथ्स इट कुड गो अप टू 15% 20% ऑफ दिल्ली गेटिंग देयर वाटर थ्रू दिस। पानी की दिल्ली में किल्लत है, मैं तो बता ही रहा हूँ कि हमारी रिक्वायरमेंट 1250 की है, 1000 प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब फॉरगेट अबाउट समर्स, हमें हरियाणा से यमुना से पानी मिलता है। हरियाणा में पानीपत के अंदर जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री उसके अंदर अपना सारा एफ्लुएंट छोड़ देती है। अभी पिछले महीने ही हम दोनों काफ़ी ज़्यादा वो वर्कड अप थे कि अमोनिया, फिर दिल्ली में जो पानी यमुना से पहुंचता है वो उसमें अमोनिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। Correct. बहुत ज़्यादा। तो जब अमोनिया बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शट करने पड़ते हैं। करेक्ट। बिकॉज हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उस अमोनिया को डील करने के काबिल नहीं है। तो हमारे 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अगर पूरे शट हो गए तो इस एरिया की काफ़ी बड़ी दिल्ली जो है वो सफ़र करती है। तो जब वो काफ़ी बड़ी दिल्ली सफ़र करती है तो इट्स नॉट जस्ट समर की आप तो बात कर रहे हो, अभी विंटर में भी ये मॉडल टाउन है, वजीरपुर है, आदर्श नगर है, इन एरियाज के अंदर पिछले 15-20 दिन से पानी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शट करने पड़े। वहाँ पे अमोनिया का लेवल 7 हो गया। इट शुड बी मच लेस देन 1। सर जब भी ये जो अमोनिया या किसी चीज का इशू आता है ना सर, यहाँ पे देयर इज ऑलवेज अ टसल दैट वी सी बिटवीन बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी। क्योंकि यहाँ पे मैं बस पढ़ रहा था, सौरभ भारद्वाज said that BJP led Haryana government is responsible for this, just like you said, but then when the BJP leaders were asked for it, they said this is false and misleading. Sir, the one question that I had is, now this is a procedural issue. नहीं, ये तो फैक्ट है। वजीराबाद प्लांट बंद पड़ा है अमोनिया की वजह से। अब मीडिया में जो मर्जी बाइट देते रहो, मीडिया की मजबूरी है कि उनको उनकी बाइट्स दिखानी पड़ती है। Got it. सर, तो इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? बिकॉज आई वाज स्पीकिंग टू निर्मला मैम ऑल्सो, शी सेड द सेम थिंग दैट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, इट कांट बी डिसरप्टिव बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, इट कांट बी डिसरप्टिव बिटवीन द स्टेट एंड द स्टेट, देयर हैज टू बी प्रोग्रेसिव कोऑर्डिनेशन। बट टाइम एंड अगेन द सेम थिंग हैपेंस, देयर इज अ कावेरी dispute that's happening between Tamil Nadu and Karnataka, here we have this dispute which is happening between Haryana and Delhi for water problems, and like I said, in this politics the collateral damage happens to the people of India. So what is the system, how do we fix the system which will not result into this clash? Because after all, we're governing the same people of India. So at the end of the day, it's politics that is guiding everything. Okay. तो पॉलिटिक्स की वजह से ये सारे डिस्प्यूट्स हैं। Okay. तो बट मैं बाकी देश के डिस्प्यूट्स में तो नहीं जा सकता। आई कांट गिव अ सोल्यूशन टू कावेरी डिस्प्यूट, बट दिल्ली के बारे में कह सकता हूँ दैट वेयर एज on one hand we will keep on trying to get our adequate share of Delhi's waters from other states. We will seek a review of the earlier agreements based on the rise in Delhi's population. However, we will not solely depend on that. हम जो मैंने अभी आपको प्लान बताया कि 500 MGD पानी हम अपने दिल्ली के ग्राउंड वाटर से हम तैयार कर लेंगे, वो पूरा प्लान हमारे पास है। Got it. तो साथ साथ ये भी करेंगे, ग्राउंड वाटर से भी करेंगे, और वी विल ऑल्सो सीक अ रिव्यू ऑफ द अर्लियर एग्रीमेंट। Sir, but is there a strategic way to go about it? Like you can be persistent, you can insist, you can sit on protest, but that slows down the process, right? What's the long-term solution to this? बता दिया ना, हम अपने आप कर रहे हैं। हम अपने आप करेंगे, वो हमें We कुछ will नहीं not देंगे। depend- हाँ, सर ने क्या कहा है, वो कुछ भी नहीं देंगे, मान के चलो। वो जो भी देंगे बोनस है। अच्छा, आप assume करके चल रहे हो कि कुछ भी नहीं देंगे हमारे। ये वो देख लेंगे तो फिर ये कोर्ट में ले जाके कहेंगे इनको जरूरत ही नहीं है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा अच्छा, ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूँगा, दिल्ली के लोगों को उनके हक का पानी मिलना चाहिए, लेकिन हम वो कब देंगे, कैसे देंगे, हमें नहीं पता। Got it. तो तब तक हम दिल्ली के लोगों को सफर नहीं होने देंगे। Sir, is the state of Yamuna so bad right now because of the dumping of waste into the Yamuna River from other states? नो, हमारी दोनों हैं। यमुना में दिल्ली का भी सीवेज जाता है, गंदा पानी जाता है। इधर से हरियाणा से बादशाहपुर ड्रेन में आता है, बादशाहपुर ड्रेन से नजफगढ़ ड्रेन में जाता है, नजफगढ़ ड्रेन जो है वो यमुना में गिर जाती है। Okay. वो सारा भी, और नजफगढ़ ड्रेन दिल्ली का भी सारा गंद लेके पूरे इट रन्स अक्रॉस द सिटी। नजफगढ़ ड्रेन इधर
बादशाहपुर का गंद लेके आती है, फिर दिल्ली से जब होते हुए जाती है तो दिल्ली का सारा सीवर उसके अंदर गिरता है, और फिर ये उधर से यूपी से शादरा ड्रेन आ रही है, तो यूपी का शादरा ड्रेन सारा गंद लेके आती है, और दिल्ली की अपनी जो ड्रेन्स हैं वो उसके अंदर गिर रही हैं। ओके। सो दिल्ली का भी कचरा है, यूपी का भी कचरा है, और हरियाणा का भी कचरा है। ओके। अब इसमें ऐसा है कि हम काफ़ी आगे आ गए हैं यमुना को साफ़ करने के लिए। हमारा जो सीवर है, दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं बहुत ज़्यादा। देयर आर अबाउट 1792 unauthorized colonies in Delhi. Okay. What is an unauthorized colony? It is an illegal colony, not Encroachment. sanctioned by the government. तो उन unauthorized colonies के अंदर 2015 में जब हमारी सरकार बनी, उसके पहले वहाँ कोई भी डेवलपमेंट अलाउड नहीं था। वहाँ पानी की पाइपलाइंस नहीं थी, वहाँ सीवर की पाइपलाइंस नहीं थी, वहाँ सीवेज नहीं थे, सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं था। तो ऑर्डर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के इनके कि ये अनऑथराइज्ड हैं, सो यू कांट प्रोवाइड बेसिकली। वी वर्कड आउट द एंटायर सिस्टम एंड वी गॉट अ सिस्टम इन प्लेस कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, कि लोग तो रह रहे हैं वहाँ पे, और ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ दिल्ली इज स्टेइंग इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज। दैट इज़ अ मैसिव फेलियर ऑफ DDA. DDA was supposed to build lot of houses in Delhi. DDA failed. DDA was supposed to get this thing private builders into this thing. On housing में DDA failed. तो जब लोग आते गए दिल्ली के अंदर, घर थे नहीं, तो जो खेती की ज़मीन थी, लोगों ने खेती की ज़मीन काट के और बेच दी। Okay. तो वो सारी अब ये 1792 कॉलोनीज़ में सीवर सिस्टम नहीं था जब हमारी सरकार बनी। इसका सारा सीवेज इसमें जाता था, नजफगढ़ ड्रेन में और इन सारी ड्रेन्स में जाता था। हमारे 6 बड़ी ड्रेन्स जाती हैं यमुना के अंदर। ओके। इनसे यमुना में, तो उसकी वजह से सारा वो कचरा था। अब ये सारी कॉलोनीज़ के अंदर ऑलमोस्ट सारी 150-200 शायद कॉलोनीज़ बची हैं अब। बाकी सारी कॉलोनीज़ के अंदर हमने सीवेज सिस्टम बना दिया है। ओके। सो सीवेज की पाइपलाइन लग गई है, और अब मोस्टली एरियाज़ में पाइपलाइन से डोर टू डोर, घर में भी सीवेज चला गया है, और जहाँ नहीं गया वहाँ जा रहा है अब। ओके। पाइपलाइन डल गई है, मेन पाइपलाइन सीवेज की। नाउ दिस एंटायर सीवेज हैज़ टू बी टेकन टू अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो दिल्ली के अंदर जो एग्जिस्टिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स की कैपेसिटी 1.5 टाइम्स कर रहे हैं। नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा रहे हैं, तो इनमें एग्जिस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ा देंगे और नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा देंगे, तो दिल्ली का सारा सीवर जो है वो इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाना चालू हो जाएगा, और यमुना के अंदर गंदा पानी जाना दिल्ली की तरफ से बंद हो जाएगा। ओके। शादरा का और बादशाहपुर का भी सुप्रीम कोर्ट के और NGT के ऑर्डर्स हैं दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि आप दिल्ली के अंदर अपना कूड़ा नहीं भेज सकते, बट द ऑर्डर्स आर नॉट बीइंग फॉलोड। तो हमने डिसाइड किया, रादर देन वेटिंग फॉर द कोर्ट ऑर्डर्स टू बी फॉलोड, हम जो बादशाहपुर ड्रेन से दिल्ली में पानी एंटर कर रहा है वहाँ हम अपना एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा देंगे, और एक शादरा वाले उस पर लगा देंगे, तो वहीं पे उस पानी को साफ़ करके नजफगढ़ ड्रेन में हम डालेंगे। ओके। तो फिर इस तरह से हम तो काफ़ी आगे तक आ गए हैं हम इसमें। जैसे सारा नेटवर्क बन गया, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, नेटवर्क बनाना। ये जितने 1.5 टाइम्स STP करने थे वो भी काफ़ी हो गए हैं। तो मुझे लगता है अगले 3-4 साल के अंदर यमुना बेहतर होनी चाहिए। Sir, so are the water levels getting, as in, is the water quality getting better with time? अभी I will not say that there is too much of improvement. There is an improvement, but I will not make any false claims कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट होगा। अभी जैसे मैंने बताया नेटवर्क बन गया पूरा, इस नेटवर्क से सारा सीवेज ट्रीटमेंट हमें STPs में लेके जाना है। काफ़ी ले गए हैं, काफ़ी अभी लेके जाना है। फिर ये सीवेज ट्रीटमेंट का भी जो ये पुराने STPs लगे हुए हैं, तो पुराने STPs इसको क्वालिटी ऑफ वाटर कहते हैं 30/40, इट शुड कम डाउन टू 10/10 प्योरिटी। ओके। तो 10/10 प्योरिटी के लिए भी वहाँ पे सारे पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में हमने इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं। ये जब हो जाएगा और ये जाएगा तब आप यमुना साफ देख पाएंगे। सर बट why does it take so much time, सर? पिछले 10 साल तक क्यों नहीं हो पाया ये? यार 75 साल का कूड़ा 10 साल के अंदर हमें पाइपलाइन डालने में भी तो टाइम लग गया ना। और इतना आप ऐसा नहीं कर, सरकार का इतना बजट है, तो आज आप ये करते हो भाई 4-5 साल के अंदर मैं पाइपलाइन डाल लूँगा, अगले 2-3 साल के अंदर इतने पैसे से मैं सारे STPs को इंक्लूड करूँगा। मेरे पास इन्फिनिट पैसा नहीं है, तो यू मेक माइलस्टोन्स। आप ये बताते हो कि 2 साल में इतना कर देंगे, फिर तो ये मतलब इट्स टेकिंग, आई थिंक जो 75 साल में काम नहीं हुआ वो अब 10 साल के अंदर इतनी तेजी से हो गया, यही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सर एक छोटा सा सजेशन दूं मैं आपको
कि इनफैक्ट मैंने ये बहुत बार देखा हुआ है, जैसे हम बोलते हैं कि लैंडफिल क्लियर करने का इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क, इट रिक्वायर्स अ वेरी टीडियस टास्क एंड रिक्वायर्स परहैप्स अ डेकेड टू सॉल्व. One of the reasons why this skepticism often pops up is because a video of yours circulates where you said that by 2024 this will be done. By 2020 नो आई एग्री, आई एडमिट 2020 का चुनाव में मैंने कई वादे किए थे, 3 बड़े वादे किए थे मैंने, वो मैं नहीं कर पाया. आज एडमिट कर रहा हूँ आपके शो पे. मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैंने कहा था मैं पानी घर घर में 24 घंटे पहुंचा दूंगा, मैंने कहा था मैं दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड की बना दूंगा. 2020 का चुनाव फरवरी में खत्म हुआ, मार्च में कोविड आ गया. विद इन अ मंथ 2.5 साल कोविड में बीत गए. नो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, नो डेवलपमेंट, नथिंग वाज अलाउड एट दैट टाइम. रेवेन्यूज डिप्ड वेरी बैडली बिकॉज द एंटायर इकोनॉमी, सारे मार्केट बंद थे, सारी इंडस्ट्री बंद थी, हमारे तो रेवेन्यू बिल्कुल जीरो हो गया था. तो 2.5 साल कुछ नहीं हुआ. उसके बाद पिछले 2 साल से आप देख रहे हो, कभी ये जेल में, कभी मैं जेल में, कभी मनीष सिसोदिया जेल में. इन्होंने फर्जी केस के अंदर हमें उलझा दिया. नाउ आई एम अ टीम प्लेयर. इसका आइडिया है तो यही करता है. ये जेल में चला जाए तो सारा काम मेरा रुक जाता है. मनीष सिसोदिया जेल में चला जाए, काम रुक, आतिशी जेल में चली जाए, मैं जेल में चले जाऊँ, काम रुक जाए. तो पिछले 2-2.5 साल से हम इन चीज़ों से, अब ना तो अब कोविड है, होपफुली आप भविष्य में नहीं आना चाहिए, और ना आप हमारे ये पछड़े हैं. Thank you so much, sir. This is how we conclude the first segment, by the way. So the next thing that I want to talk to you about, the Mohalla clinics. In fact, again, I spoke to people and they gave me some very beautiful anecdotes. उन्होंने हमको बोला कि पहले सरकारी हॉस्पिटल्स इतने खराब थे कि जब वो जाते थे हॉस्पिटल तो वॉचमैन उनको भगा देता था, बोलता था कि डॉक्टर साहब नहीं है. एक को तो वॉचमैन ने बोला कि डॉक्टर साहब सो रहे हैं और दोपहर को कल आओ, और बच्चा बीमार है लेकिन फिर भी उसको हॉस्पिटल में एंट्री नहीं दी जा रही थी. लेकिन टुडे पीपल आर ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है. इसमें मैं आपको एक एनेक्डोट सुनाता हूँ. हाँ जी. मुझे ये कहते हुए बिल्कुल वो नहीं है कि हमारे दिल्ली की सरकार के हॉस्पिटल्स और दिल्ली सरकार के डॉक्टर्स आर फार सुपीरियर देन द प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर्स. जैसे मेरी मदर है, वो सीएम की मदर है, तो उनकी एक दोस्त थी, शी वॉज रीजनेबली वेल ऑफ. उनका हस्बैंड, वेरी ओल्ड लेडी, उनका हस्बैंड दिल्ली के बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल, आई विल नॉट नेम द हॉस्पिटल, बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट था, आईसीयू में था. डेली का 1.5 लाख रुपए का बिल आ रहा था. वहाँ के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, बोले कि ये बचेंगे नहीं, इनको ले जाओ घर में सेवा करो. नहीं, वो उन्होंने ये नहीं कहा ले जाओ, उन्होंने बस ये कह दिया कि बचेंगे नहीं, और डेली का 1.5 लाख रुपए का बिल आ रहा था. सो दैट लेडी कॉल्ड अप माई मदर एंड सेड कि इनको कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा दो. जब उन्होंने बचना ही नहीं है तो 1.5 लाख रुपए रोज़ खर्च करने से क्या फ़ायदा है. हमने उनको जीबी पंथ में एडमिट करा दिया. 5 दिन के अंदर ठीक होके वो घर चले गए. वाओ, इंटरेस्टिंग सर. सो हमारे हॉस्पिटल्स भी बहुत अच्छे हैं, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड. एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो लूट है ना, ओवर मेडिकेशन, ओवर दिस थिंग, मतलब वो पैसा बचाने के लिए आपके ज़बरदस्ती टेस्ट्स भी करा देते हैं. ज़बरदस्ती एक डॉक्टर की ज़रूरत है तो वो 10 डॉक्टर आ जाते हैं आपके वो करने के लिए. वो सरकारी में नहीं है. सरकारी में वो उसके पास 100 पेशेंट हैं देखने के लिए एक दिन में. तो वो ये सोचता है कि मैं जल्दी कैसे इसका इलाज करके इसको ठीक करूं. उसका मकसद होता है ठीक करना इसको, कि ये दोबारा ना आए. और वहाँ पे इलाज होता है कि इसको एक बार फंस गया तो अब इसको छोड़ो नहीं, इससे जितनी इसका पैसा है इसको चूस लो. Yeah. Sir, when it comes to the Mohalla clinic, I found 2 points of skepticism. एक तो सर मोहल्ला क्लिनिक सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता है. 2 शिफ्ट्स हैं. 8 बजे से 2 बजे तक का टाइम है, और कुछ मोहल्ला क्लिनिक 2 शिफ्ट में खुलते हैं, वो 2 बजे से 8 बजे तक, मतलब सुबह 8 से 8 तक हैं. Okay. थोड़े से हैं, तो 2 शिफ्ट्स में होते हैं, कुछ हैं, मोस्टली ज़्यादातर 8 बजे से 2 बजे तक. 2 बजे तक. Okay. ट्रैफिक, अगर कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स में डिमांड बहुत ज़्यादा है तो 2 शिफ्ट कर दी है. Okay. और अगर डिमांड कम है तो 8 से 2 की 1 शिफ्ट है. Got it. स्टैंडर्ड इज 8 बजे से 2 बजे तक. Okay. कुछ जगह पर बहुत रश था, उसी जगह पर उसको सेकंड शिफ्ट चालू की. Okay. सेकंड शिफ्ट में फिर डिफरेंट डॉक्टर आता है, बिकॉज एक डॉक्टर 6 घंटे लगातार पूरी OPD टीम करके नहीं आती है. थक जाता है. Got it. सर यहाँ पे ना सर मोहल्ला क्लिनिक में हमको ना सर 2 पॉइंट्स ऑफ स्केप्टिसिज्म दिखे. पहला तो ये था द एंटी करप्शन ब्रांच सेज दैट नियरली 65,000 घोस्ट पेशेंट्स वर फाउंड. घोस्ट पेशेंट्स नहीं है वो. ओके. वो बहुत सारे डॉक्टर्स जिनको इन्होंने, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि गंदी पॉलिटिक्स की वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस सिस्टम को डिसरप्ट करने की कोशिश की. ओके. एक डॉक्टर के पास, ये मोहल्ला क्लिनिक कौन सा है, मोहल्ला क्लिनिक में बहुत गरीब लोग भी जाते हैं, उसके पास फ़ोन नहीं है. लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में सब कुछ ऑटोमेटिक है. वो आईपैड उसको दिया हुआ है डॉक्टर को,
उसको डेटा एंट्री करनी है, उसको एक फ़ोन नंबर देना ही देना है। तो फ़ोन नंबर जब उस डॉक्टर को देना है तो जिस पेशेंट के पास फ़ोन नहीं होता उसमें डॉक्टर अपना नंबर डाल देता है, जस्ट टू इंश्योर दैट उसकी एंट्री हो जाए। मैं जेल में था, जेल में तो फ़ोन नहीं अलाउड था, तो जेल में जब फ़ोन अलाउड नहीं था तो वहाँ पे डॉक्टर क्या डेटा एंट्री करेगा मेरी? जब मैं पेशेंट हूँ, मैं डॉक्टर के पास गया दिखाने के लिए, वो क्या डेटा एंट्री करेगा? वो फिर वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देता है। तो दी 65,000, मैं ये नहीं कहूँगा सारे, हो सकता है कि 5-10% ने गड़बड़ की भी हो, उनको पकड़ो, लेकिन सारे जहाँ पे भी आपको वो मिले तो वो सारे फर्जी नहीं है। मतलब कई जगह डॉक्टर्स ने अपने नंबर। सर मैं एक काम करूँगा आपको, दिल्ली की वोटर लिस्ट ले लीजिएगा, उनसे डाटा ले लीजिएगा, तो सारे घोषणा में तो बहुत सारे नंबर्स के आगे 9-10 टाइम्स लिखा होता है। 9 क्यों लिखा जाता है सर? वो घोस्ट नहीं है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर जो भी आता है उसकी एंट्री होती है, रजिस्टर में भी एंट्री, सब कुछ एंट्री होती है। हर मोहल्ला क्लिनिक में 2-2 सीसीटीवी कैमरे हैं। ओके। एक पेशेंट की वहाँ पे वीडियो है, तो वहाँ पे स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन इज लिमिटेड, बट यू कैन ऑलवेज, कि ह्यूमन इंजेन्युइटी ऐसी है कि किसी भी सिस्टम को वो कर लेती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सिस्टम मस्ट बी हंकी डोरी, बट जस्ट बिकॉज अ फ्यू गलत चीजें पाई गई, दे ट्राइड, द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइड टू डिसरप्ट द एंटायर सिस्टम। मैं जब जेल में था, इन्होंने सारे मोहल्ला क्लिनिक्स की दवाइयां बंद करा दी, सारे मोहल्ला क्लिनिक्स के टेस्ट्स बंद करा दिए। ओके। जो डॉक्टर्स थे उनकी 4-4 महीने तक डॉक्टर्स की पेमेंट्स नहीं की। इज दैट डन? नो। 4 करोड़ या से 5 करोड़ पेशेंट्स, 5 करोड़ पेशेंट्स अभी तक मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा चुके हैं। आपका डेटा कह रहा है 65,000 गलत नंबर मिले, लेट अस अज्यूम आपका डेटा ठीक है, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं। 5 करोड़ में से अगर 65,000 नंबर गलत मिले तो क्या सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दोगे तुम? दिल्ली के मेक सेंस सर। आप उन 65,000 को जेल भेज दो, जिन्होंने भी किया उनको जेल भेज दो। सारी दवाइयां कैसे बंद कर सकते हो यार मोहल्ला क्लिनिक की? टेस्ट बंद कैसे कर सकते हो? हाउ कुड एलजी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डू दिस? उसके लिए भी हमें धरना करना पड़ता है कि हमारी दवाइयां दोबारा रिस्टोर करो, हमारे टेस्ट दोबारा रिस्टोर करो। Got it. Sir, if I were to play devil's, अगर 1% ट्रेन लेट होती है, सारा रेलवे सिस्टम बंद कर देंगे क्या? करेक्ट। जो एक % लेट है उनको ठीक चला लो। अंडरस्टूड। अगर एक रेलवे का एक्सीडेंट हो जाए तो रेलवे बंद कर देंगे कल। समझ रहा हूँ सर मैं। सर एक क्वेश्चन था सर मुझे, एंड दिस इज प्योरली प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, बिकॉज सर हमारा एक कोर्स है जहाँ पे ना ये फर्जी सिस्टम बहुत चलता है, तो हमने ओटीपी के थ्रू उसको फिक्स कर दिया, बट यहाँ पे ओटीपी के थ्रू उसको फिक्स नहीं कर सकता बिकॉज बहुत लोगों के पास फोन नंबर्स नहीं है। तो मान लो मैं एक प्राइवेट लैब हूँ जो मोहल्ला क्लिनिक से सारे टेस्ट को लेता हूँ और मैं उसको टेस्ट करता हूँ, और मैंने अगर मान लो एक डॉक्टर के साथ टाइप कर लिया और मैं डॉक्टर को बोलता हूँ कि आप बस, क्योंकि मोबाइल नंबर है नहीं, कोई वेरिफिकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, तो आप 000 डाल दो और ये दिखा दो कि मैंने लैब टेस्ट कराया है, दिल्ली सरकार मुझे रिइंबर्समेंट दे देगी। तो डू वी हैव अ सिस्टम टू बी एबल टू कर्ब दिस? है भी शायद, और कर भी सकते हैं। मेरा ये कहना है कि नीयत का सवाल है। अगर आपकी नीयत सिस्टम को ठीक करने की थी, जैसे आपने अभी एक सिस्टम बताया, कर सकते हैं, वी कैन डू इट। इसी तरह से बैठ के बात करके उस सिस्टम को सुधारा जा सकता है। लेकिन आपकी नीयत है कि मैं 4 गलतियां पकड़ लूं और फिर सारा सिस्टम डिमोलिश कर दूं, सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दूं। क्यों? क्योंकि 4 फोन नंबर गलत मिल गए मुझे। तो इसीलिए 5 करोड़ पेशेंट्स के जहां पे आते हैं वो मैं मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दूं, दवाइयां बंद कर दूं, टेस्ट बंद कर दूं, डॉक्टरों की फीस बंद, तनख्वाह बंद कर दूं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ठीक करते हैं ना, जैसे आपने बताया करेंगे इसको, वी कैन डू इट। और नीचे के लेवल, जब इस लेवल पे पॉलिसी बनती है, नीचे तक आते 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 वहां पे नीचे के लेवल पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिस्टम को ट्वीक करने वाला मिल ही जाता है। करेक्ट। उसको पकड़ के एक्शन लो ना उसके खिलाफ। You will not close down your hospitals because someone in some mohalla clinic has played the system. Yeah. Understood, sir. अगर 5 या 6 क्लर्क ने कहीं बदमाशी करके 30,000 35,000 फर्जी फोन नंबर डाल दिए, तो 5 करोड़ पेशेंट्स को कैसे तुम सजा दे दोगे यार? ये 1,000 में 1 से भी कम है। 1,000 पेशेंट में 1 से भी कम है। अगर 1,000 में 1 गलती है, मान लो सारे ठीक मानते, पहली बात तो ठीक सारे, मतलब ऐसा नहीं है, अगर उनको मान भी लेते हैं तो भी 1,000 में से 1 है ना। तो ना 1,000 में से भी कैसे, 5 करोड़ पेशेंट में से 65,000, इट इज लेस देन 10,000 में एक बनेगा। सर जैसा कि आपने बोला सर, to throw the baby out with the bath water. So you've thrown the baby out with the bath water. Ban Ki-moon, when he was US Secretary General, he came to visit मोहल्ला क्लिनिक, और वो नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर कौन थी?
हाँ, वो भी आई थी, नॉर्वे की और प्राइम मिनिस्टर आई थी, कोफी उनके साथ। अन्नान भी आए थे आफ्टर। कोफी अन्नान साहब आए थे। Okay. उन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला दैट दिस इज द मॉडल दैट शुड बी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर दैट शुड बी रेप्लिकेटेड द वर्ल्ड ओवर। Wow. इट्स नॉट जस्ट मतलब वन ऑफ। अगर ग्रेटर कैलाश के पेशेंट्स दिखाने जा रहे हैं, वर्ल्ड लीडर्स अगर देखो कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे। Correct. और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट सारी दवाइयां बंद कर देती है, ऑर्डर निकाल के सारे टेस्ट बंद। वाई? क्योंकि 65, वैसे तो वो भी फर्जी है वो, लेकिन मैं मान लेता हूँ भाई 65,000 फ़ोन नंबर गलत निकले 5 करोड़ में से, उनको टांग दो यार। किसी क्लर्क ने नीचे कोई ट्वीक किया होगा सिस्टम को, किसी लैब असिस्टेंट ने ट्वीक किया होगा, उनको टांग दो उन लोगों को पकड़ के। बट यू कांट स्टॉप द एंटायर सिस्टम। उसमें So how तकलीफ long होती was है। this stopped for? 5 महीने 5 तक महीने, उन्होंने 5-6 दवाइयां नहीं दी। अभी अब जाके स्टेबल जाके थोड़ा सा दवाइयां स्टेबल हुई है। मैंने निकलने के बाद डेली बेसिस के ऊपर वो किया है। दवाइयां अभी तक नहीं आ रही थी, टेंडर नहीं होने दिए दवाइयों के। Sir, इसमें तो मुझे ये समझ में आ रहा है that a large part of your time is just in fighting. स्ट्रगलिंग विद द सिस्टम। कोई मैं अपने लिए थोड़ी लड़ रहा हूँ यार। मेरी बेटी कि मेरी बेटी को नौकरी नहीं दे रहे, मेरी बेटी को टेंडर नहीं दे रहे। मैं अपने लिए तो मैं लोगों की दवाइयों के लिए लड़ रहा हूँ, लोगों को टेस्ट करवाने के लिए लड़ रहा हूँ। मतलब मेरा दिल रो पड़ता है जब मैं देखता हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे हम लोगों ने, वहाँ इलाज नहीं हो पा रहा। Yeah. उनका क्या कसूर है यार? Understood, sir. जो उन पेशेंट्स का क्या कसूर है? उन 5 करोड़ पेशेंट्स का क्या कसूर है जिनका तुमने दवाइयां रोक दी, टेस्ट रोक दिए? वो रोज जाते हैं वहां पे। जब दवाइयां नहीं मिलती तो फिर वो मतलब जस्ट बिकॉज उनको दवाई नहीं मिलेगी तो वो केजरीवाल को गाली देंगे। बस इस मंशा से उन्होंने दवाइयां रोक दी। चलो, कि केजरीवाल को गाली आपको पड़ेगी। एक छोटी चीज बताता हूँ। आप एम्स में जाइएगा, आसपास जितने भी मोहल्ला क्लिनिक हैं, 3-4 मोहल्ला क्लिनिक विजिट कर लीजिएगा। एम्स के बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, बहुत ही मैं उनको तारीफ करूंगा, बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं। वो कहते हैं यार टेस्ट यहाँ पे छोड़ो, हम मोहल्ला क्लिनिक से करा लो जाके। 365 टेस्ट जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में टेस्ट नहीं होते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में किए जाते हैं। और टेस्ट हम कराते हैं रेनबैक्सी जैसी रेप्यूटेड प्राइवेट लैब से। और वो क्या कह रहे हैं कि जी आप प्राइवेट लैब से नहीं कराओ, अपनी लैब लगा लो। यार लैब लगाने में 1000 करोड़ लगते हैं, जब प्राइवेट लैब अवेलेबल है पर और उससे अच्छा टेस्ट करे। Of course. मुझे 80% डिस्काउंट दे रही है बिकॉज ऑफ बल्क। Yeah. मैं इतना बल्क में काम करा रहा हूँ। वो कहते हैं नहीं हम अपनी अलग से लैब लगाएं। यार कौन सा मॉडल समझा रहे हो आप हमारे को? Yeah. कल को आप ऐसा कीजिएगा, हम कहते हैं हर चीज की फैक्ट्रियां भी लगा लेते हैं, दवाई बनाने की भी फैक्ट्री लगा लेते हैं। ये कमाल हो गया। हमें मैं जनता दवाई को भी बाहर से क्यों खरीदे? फिर दवाई की फैक्ट्री लगा ले, सेंट्रल गवर्नमेंट सारी दवाइयां खुद ही बनाए, भाई हमने टेबल चेयर भी खुद ही बनाना चालू कर दे। And sir, it's quite ironical. that in the absence of a primary healthcare setup like this, आप बुखार हो, गला खराब हो, वायरल फीवर हो, फ्लू हो, आपको LNJP या जीबी पंत जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इमेजिन द प्रेशर ऑन दोज हॉस्पिटल्स। Yeah. आपने 80-90% ट्रैफिक डाइवर्ट करके एट अ लेवल ऑफ अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर लाइक मोहल्ला क्लिनिक सारा डील कर लिया। और जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, दे डील विद बिगर प्रॉब्लम्स एंड बिगर इलनेसेस। सो इनफैक्ट बड़ा स्ट्रीमलाइन करके ये सिस्टम बनाया गया। और अगर मोहल्ला क्लिनिक ठप हो जाते हैं, द अदर साइड इफेक्ट ऑफ दैट इज कि सारा वर्कलोड हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। नॉट ओनली दैट, हमने 3 लेवल सिस्टम बनाया। देयर इज मोहल्ला क्लिनिक, देयर इज बिगर हॉस्पिटल, बीच में हमने पॉली क्लिनिक्स का एक लेवल बनाया। Polyclinics. Has this already started, sir? या उस 125 के करीबन। सर Okay. अभी मतलब 260 तैयार हो गए हैं, उसमें से लगभग 40-50 चल रहे हैं। तो उसमें मोहल्ला क्लिनिक ऐसे है जिसमें इन पेशेंट्स नहीं है, ओपीडी है बस। आता है, दिखाता है, दवाई लेता है, टेस्ट कराता है, चला जाता है। वो पॉली क्लिनिक वो है जहाँ पे 8 किस्म के स्पेशलिस्ट्स बैठते हैं। ऑर्थो का बैठता है, गायनी का बैठता है, पीडियाट्रिक्स का बैठता है। इस तरह से 8 किस्म के स्पेशलिस्ट बैठते हैं। उसमें 1 दिन की आईपीडी होती है। मान लो किसी का फ्रैक्चर हो गया तो वो जाता है वहाँ पे प्लास्टर लगवाने। सो सुबह से शाम तक की उसकी होती है, शाम को उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। Okay. जिसकी बीमारी, तो ये मोहल्ला क्लिनिक से एक लेवल ऊपर है। जिसकी यहाँ भी इलाज नहीं हो सकता वो फिर ऊपर जाता है। तो जो राघव कह रहा था कि इतने सारे पेशेंट्स जो इन बड़े से हॉर्स में, वो सारा वर्कलोड जो है वो पॉली क्लिनिक और मोहल्ला क्लिनिक में शिफ्ट हो गया। आप इसको पेशेंट के नज़रिए से देखिए। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया बताता है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ केयर की रिपोर्ट्स बताती हैं कि मैक्सिमम इंडियन फैमिलीज अपना गोल्ड प्लेज करती हैं, सोना गिरवी रखती हैं, क्योंकि शादी करने के लिए नहीं, बच्चों को फॉरेन में पढ़ाई कराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी किसी मेजर इलनेस या कोई हेल्थ केयर इशू जो फैमिली में आया उससे बैटल करने में। सबसे ज़्यादा सोना गिरवी रखा जाता है कि कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो उसके इलाज कराने के लिए जो खर्च है वो उससे पूरा किया जाता है। और सिर्फ ये भी नहीं,
एक प्रोडक्टिव मेंबर इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक साइकिल में प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है देश की, अगर वो बीमार पड़ जाए एक परिवार का, तो परिवार कई साल पीछे हो जाता है। करेक्ट। तो हेल्थ केयर इज सो इम्पोर्टेंट एंड सो क्रिटिकल, और अगर हम उसे प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे या सुपर स्पेशलिटी लेवल पे डील करते हैं, हम उस फैमिली को इकोनॉमिक साइकिल से बाहर जाने से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सर, हियर डजंट अ पॉलिसी लाइक आयुष्मान भारत हेल्प? आयुष्मान भारत की बड़ी सारी प्रॉब्लम है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशंस, आप दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं और वहाँ 100 पेशेंट्स का सर्वे करें, उसमें से कम 50-60% पेशेंट्स एडजॉइनिंग स्टेट्स से आए हुए मिलेंगे। ओके। और सारे एडजॉइनिंग स्टेट्स में आयुष्मान भारत है। फिर उनको इधर आने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्या जरूरत है सर? आप बताओ। बिकॉज दे डोंट गेट। इसका मतलब आयुष्मान भारत इज अ नॉन वर्किंग सिस्टम। अगर यूपी में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यहाँ सब जगह आयुष्मान भारत है, बिहार में, यहाँ सब जगह आयुष्मान भारत है। अगर यहाँ आयुष्मान भारत अच्छी काम कर रही है तो दिल्ली क्यों आ रहे हो? So, but this is insurance too, sir. Can't they get insurance anywhere? नहीं, जस्ट तो फर्स्ट इज बेसिक ये है कि इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद आयुष्मान भारत। Understood. If it had been working, they need not have traveled all across to Delhi. Second is आयुष्मान भारत कहती है जिसके पास 2 व्हीलर है, जिसके पास पक्का मकान है, जिसके पास घर में टीवी है, जिसके पास फ्रिज है, जिसके पास ये है, उस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो दिल्ली में तो कोई बचेगा ही नहीं। हम दिल्ली में इतना बुरा नहीं है कि किसी के पास टीवी भी ना हो। टीवी तो झुग्गी वालों के पास भी है। So if you're like a normal person who just has an Activa, you're not eligible for Ayushman Bharat. Eligible for आयुष्मान भारत in your family. आयुष्मान भारत का एक और बहुत दिल्ली में तो जो झुग्गी में भी रहते हैं उनका मकान पक्का है। मतलब हाँ, एक तरह से देखो, वो झुग्गी भी जो पक्की है, नंबर 1, नंबर 2, टीवी तो सबके घर में है। फ्रिज तो सबके घर में मिलेगा, झुग्गी वाले के घर में भी मिलेगा। तो वो तो आयुष्मान भारत में दिल्ली में कवर कौन होगा? कोई कवर नहीं होगा। फिर हमने उनको ये भी ऑफर किया, हमने कहा ठीक है ऐसा कर लेते हैं कि हमारी भी योजना रखते हैं, आपकी भी रखते हैं। वाई फाइट विद ईच अदर? जितने लोगों को आपकी योजना में बेनिफिट मिल जाए आपके में ले लो, बाकी जो है जिसको नहीं मिलेगा वो बोले नहीं, योजना एक ही चलेगी, हमारी चलेगी। अब हमारी योजना में दिल्ली में सारों को सारा इलाज फ्री है। जैसे मैंने बताया कि कोई अमीर से अमीर आदमी भी मोहल्ला क्लिनिक में आए, उसके सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री, सब कुछ फ्री। अब मैं वो बंद कर दूं और मैं ये कहूँ जिसके पास टीवी है, जिसके पास ये, बस उनको नहीं मिलेगा और बाकी को मिलेगा, तो मैं तो एक अच्छे खासे वर्किंग सिस्टम को बंद करके एक कम्प्लीटली स्टूपिड सिस्टम को लागू करूंगा, तो इट डजंट मेक सेंस। दूसरी बात आप देखिए, उसमें 5 लाख पर ईयर की कैप है फॉर द होल फैमिली। हाँ। अब मान लीजिए कि परिवार के 2 सदस्य हैं, मेरी मदर बीमार हो जाती हैं, उनको कोई इलाज चाहिए। एक तो अगर वो सर्जरी 5 लाख से ज्यादा की है तो उसका क्या होगा? आज के दिन में दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में चाहे 1 लाख की हो, 5 लाख की हो, 50 लाख की सर्जरी हो, पेशेंट को कुछ नहीं देना पड़ता। अच्छा, मान लीजिए मेरी मदर ने करा ली 5 लाख की सर्जरी, उसके बाद जब मैं बीमार होंगी तो क्या होगा? उसके पैसे कहाँ से आएंगे? 5 लाख रुपए पूरी फैमिली के लिए तो कुछ भी नहीं है दिल्ली में। So you're saying that instead of insurance, it is better to provide free healthcare through government hospitals, which is more sustainable. अब बड़े अच्छे क्वेश्चन पे आए हैं हम लोग। मुझे दुनिया का एक भी कंट्री बता दो, डेवलप्ड कंट्री, जहाँ पे हर व्यक्ति के लिए, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए अच्छी हेल्थ और अच्छी शिक्षा का इंतजाम ना किया हो। कोई यूरोपियन कंट्री उठा लो, लंदन, यूके में NHS है, नेशनल हेल्थ सर्विस, सबको फ्री मिलता है, सबको NHS। जापान के अंदर पूरी शिक्षा फ्री है, सारा इलाज फ्री है। ये 2 चीजें बेसिक चीजें हैं, हेल्थ और एजुकेशन। ये चीजें भी जो सरकार नहीं दे सकती, दैट सरकार हैज नो राइट टू रिमेन इन गवर्नमेंट। इंश्योरेंस करा देंगे, अस्पताल है नहीं तो इंश्योरेंस को लेके मैं इलाज कैसे कराऊंगा? आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा यार। और वो मतलब आप प्राइवेट सेक्टर प्लेयर को रहने दो, लेकिन सरकारी सिस्टम को इतना एफिशिएंट बनाओ कि वो प्राइवेट के साथ compete कर सके, तब प्राइवेट कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो हेल्थ और एजुकेशन में अगर प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली बन गए या प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट की वजह से उसने वो कर दिया, जनता झेल नहीं पाएगी इसको। मतलब कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगा हमारा सिस्टम। जिस तरह से ये दोनों पार्टियां जो हैं, इनका पूरा हमारी सरकार बनने के पहले
देश में एक नैरेटिव ये चलता था, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू इन रनिंग स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, दे शुड बी प्राइवेटाइज्ड। धीरे धीरे दिल्ली के अंदर मैं देखता था, धीरे धीरे कहते थे ये 4 स्कूल इस कॉर्पोरेट को दे दिए, ये 4 स्कूल इस कॉर्पोरेट को दे दिए, ये 5 स्कूल इस अब ये चलाएंगे। उन्होंने चलाना थोड़ी था, वो जमीन बड़ी कीमती है। वो स्कूलों को एक कोने में 4 क्लास लगा के और बाकी सारी जमीन के ऊपर अपना मॉल बना लेंगे, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ये सब। क्या सर, रियली? ये सारा प्लानिंग चल रही थी एंड प्लानिंग कमीशन वाज इन्वॉल्वड इन इट। ये पूरे देश के लिए मॉडल था। ओके भाई, अगर जो सरकार एक स्कूल नहीं चल, सॉरी मैं मेरे मुंह से गंदा शब्द निकलने वाला था, एक सरकार एक स्कूल नहीं चला सकती, वो देश क्या चलाएगी यार? एक स्कूल तुमसे नहीं चलता, एक स्कूल तुम नहीं चला सकते। सर, इनफैक्ट आई वाज हमने टॉकिंग, जब से स्कूल ठीक किए हैं देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, अब किसी की हिम्मत नहीं है पूरे देश में कहने की कि लेट्स प्राइवेटाइज द स्कूल्स, ट्रू, लेट्स प्राइवेटाइज द हॉस्पिटल्स। आपको आयुष्मान हमारी भारत- सरकार स्कूल चला रही है, अस्पताल चला रही है, मोहल्ला के अच्छे चला रही है विद सरप्लस। विद सरप्लस। विद अ सरप्लस बजट। आयुष्मान भारत का ना एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी मैं। एलएनजेपी हॉस्पिटल हमारा 12:30 हो गए मुझे निकलना। हाँ सर, 12:30 हो गए। 12:40। 12:40। सर एक कंक्लूजन कर दूं? हाँ, कंक्लूजन सर आप कर बोल दो। दोगे कि मुझे दोगे एक हाँ, और मैं पॉडकास्ट? ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद मी। अनफॉर्चुनेटली वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड आवर टाइम लिमिट, बट गाइस सर ने कमिटमेंट दिया है कि सर एक और पॉडकास्ट करेंगे, बिकॉज इन दिस एंटायर एपिसोड वी हैव कवर्ड ओनली 2 एस्पेक्ट्स. One is water and the other is healthcare, and we dug so deep that we've covered multiple aspects in the last 1 hour and 15 minutes. We have 5 more subjects to cover, which we will cover at length, hopefully, sir. And that's it, sir. आप बोल दो सर कि आप दोगे एक और गणेश, episode. I really enjoyed, we all enjoyed Yes, we talking did. to you, because अभी तक जितना भी हम लोगों ने इंटरव्यूज़ किए, अनफॉर्चुनेटली वो सारे इंटरव्यूज़ पॉलिटिक्स पे होते हैं। हमें पॉलिटिक्स नहीं आती और इसी वजह से ये लोग हमारे ऊपर चढ़े रहते हैं। गंदी पॉलिटिक्स वो हमें करनी नहीं आती, हमें गवर्नेंस करनी आती है। वी आर ऑल प्रोफेशनल्स, वेल एजुकेटेड पीपल, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें गवर्नेंस करनी आती है। आज पहली बार कोई आदमी ऐसा मिला है जो हमसे गवर्नेंस पूछ रहा है, एंड वी आर रियली एंजॉयिंग टॉकिंग टू यू। Thank you, सो sir. वी विल कंटिन्यू विद दिस बिफोर इलेक्शंस, वील हैव अनदर राउंड ऑफ डिस्कशंस। Done, sir. Thank you so much, sir. Sir, and one thing that I would just like to say is that मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब whenever we spoke about the flaw in the Mohalla clinic, you said that, you know, let's rectify this flaw, let's brainstorm about this, because a lot of politicians often get नहीं, defensive. मैंने एक्सेप्ट किया कि भाई मैंने 5 साल पहले बोला था मैं यमुना साफ करूंगा, मैं नहीं कर पाया, अब करूंगा। और क्यों नहीं कर पाया मैंने बता दिया। मैंने कहा था मैं पानी दूंगा, मैं नहीं कर पाया। Yeah, 3 प्रॉमिस बड़े किए थे पिछले चुनाव के पहले, मैं नहीं कर पाया। आई एम एक्सेप्टिंग इट, true. लेकिन आई हैव अ प्लान, आई हैव द रिसोर्सेज एंड आई हैव द विल, विल डू इट। That is wonderful, sir. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you. Hi everyone, again. Here we are 12 hours later. But आप लोग 12 घंटे बाद वापस आए. Thank you so much for sparing another hour. This is 11 p.m. right now, guys. So we're recording from 11 p.m. to 12 p.m. now. So thank you so much for doing this, sir. midnight. 12 midnight. Thank you so much for doing this, sir. Thank you so much. Sir, now I want to talk to you about freebies. Now, a lot of people have this misconception that all freebies are bad freebies. But I know for a fact that that is not true. But I want to hear from you and Raghav, sir, as to what exactly is the logic behind freebies and how do they result into an economic output for the country? अच्छा, एक चीज़ बताओ कि अगर लोगों को हम अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे स्कूल बनाते हैं और गरीबों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, इज़ दैट अ फ्रीबी और नेशन बिल्डिंग? Nation building. नेशन बिल्डिंग। अगर हम लोगों को अच्छे अस्पताल बनाते हैं, लोगों का फ्री इलाज कराते हैं, अच्छा इलाज कराते हैं, क्वालिटी हेल्थ सर्विस देते हैं, इज़ इट अ फ्रीबी और अ नेशनल बिल्डिंग? Nation building. नेशन बिल्डिंग। आप मेरे को कोई भी डेवलप्ड कंट्री बता दो जहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ फ्री नहीं है और अच्छा नहीं है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, स्वीडन में, लंदन में जो बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो अगर मैं दिल्ली के लोगों को दे रहा हूँ तो मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? True. हमने महिलाओं की यात्रा फ्री कर दी। शायद जर्मनी में अब उन्होंने सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही फ्री कर दिया है सबके लिए। सो इफ़ वी आर फॉलोइंग जर्मनी, देन व्हाट्स रॉन्ग इन इट? True. तो ट्रांसपोर्ट अगर फ्री कर दी, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, महिलाओं का इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन बढ़ता है। बहुत सारी, जैसे मैं एक लड़की को जानता हूँ जो कि सीमापुरी में झुग्गियों में रहती है,
उसका हिंदू कॉलेज में एडमिशन हो गया, बट वो गई नहीं पढ़ने के लिए क्योंकि उसके पास आने जाने का खर्चा नहीं था उसके पिताजी के पास। अब फ्री कर दी बस, तो ऐसे बच्चे जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। महिलाओं को अगर जॉब मिलता है तो वो कई बार आने जाने के खर्चा देखती है, इतना ज़्यादा खर्चा मैं क्या करूँगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन बढ़ता है महिलाओं का। हाउ इज़ इट अ फ्री बी? ट्रू। सुबह आपको इन्होंने ये बताया कि कैसे पानी हमने 20,000 लीटर फ्री किया। अब 21,000 लीटर जो इस्तेमाल करेगा उसका पूरा पानी बिल आएगा। तो 20,000 फ्री करके हमने पानी को बचाया। अब जो 25,000 इस्तेमाल करता है वो सोचता है मैं 20,000 के नीचे रख लूँ। तो उन्होंने पानी को कंजर्व करना चालू किया। तो ये फ्री भी चिल्लाते हैं। सेम फॉर इलेक्ट्रिसिटी सर, सेम फॉर इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट। तो एक ये जो टीवी वाले सड़क पे घूमते हैं ना, तो एक टीवी वाले ने एक सड़क पे किसी ने बोला, उसने टीवी वाले ने पूछा केजरीवाल तो फ्री दे रहा है। तो उसने कहा वो केजरीवाल इनके जैसे नीरव मोदी को भगा तो नहीं देता ना पैसे लेके, वो माल्या के तरह भगा तो नहीं देता ना। वो तो ये बीजेपी वाले तो सबको भगा देते हैं सारे पैसे दे के, सारे चोरी कर लेते हैं। केजरीवाल जनता के लिए पैसे दे रहा है ना, तो जनता पैसे खा तो नहीं रहा ना। Understood, sir. Sir, here I had a question, and before we move to the follow-up, one question that I had is, sir, now have we stopped free electricity? No, it's still going Because sir, we spoke to, in fact, right now जिस कैब से हम आए, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि जब से ये जेल वेल का जब सीन हुआ है तब से इनको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है। नहीं, वो उनकी 200 यूनिट से ज़्यादा, हमारी 200 यूनिट तक फ्री है। 200 से 400 पे हाफ बिजली का बिल आता है। 400 के ऊपर पूरा आता है। तो इसका जो जिससे आपने बात की उसका 200 यूनिट से ज़्यादा हो सकता है, पहले कम आ रहा होगा। Okay. उसका जेल से कोई लेना देना नहीं है। Got it, sir. So now I just have a list of freebies over here, and we did our analysis on which freebies directly result into economic output. और जैसा कि आपने बोला इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो लोग घर में बैठ के पढ़ पाते हैं। They're able to do a lot of things at home. They stay safe at home if they have electricity in the first place. हाँ। दिल्ली में बिजली 24 घंटे आती है, पूरे देश में कहीं नहीं आती 24 घंटे बिजली। केवल अकेला दिल्ली है जहाँ पे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। पावर कट्स नहीं है, 1 मिनट का भी पावर कट नहीं होता है दिल्ली में। ये पहली बार हुआ है दिल्ली के अंदर। हमारी सरकार बनने के पहले, हमारी सरकार 2015 फरवरी में बनी थी। 2014 की गर्मियाँ याद करो जब दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगते थे। करेक्ट। एट 5600 मेगावाट्स पीक डिमांड समर्स में आती है। समर्स में 2014 की समर में पीक डिमांड थी 5600 मेगावाट, उसमें 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। आज इस वाली समर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया था। पीक डिमांड थी 8600 मेगावाट्स, 1 मिनट का भी पावर कट नहीं लगा था। तो हमने पूरे दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया है। मैंने और इसने, ये पावर मिनिस्टर था उन दिनों में, हमने खड़े हो के बिजली के तार चेंज कराए हैं, ट्रांसफार्मर चेंज कराए हैं, दिल्ली के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया। देखिए, भारत का संविधान ये कहता है दैट इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट। आर्टिकल 38 वेरी क्लियरली स्टेट्स दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी स्टेट टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर क्या होता है? अरविंद जी अक्सर ये बात रखते हैं कि हम लोगों के लिए एक सोशल सिक्योरिटी नेट तैयार कर रहे हैं, हम उन्हें एक लाइफ ऑफ डिग्निटी दे रहे हैं, एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितना पानी चाहिए, जितनी बिजली चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए, बेसिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, वो हम सबको मुहैया कराते हैं। एंड लुक एट द अदर साइड ऑफ इट, एज इलेक्टेड मेंबर्स, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब या एमएलए हैं, कोई मंत्री हैं, कोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, हम सबको बिजली भी सरकार मुफ्त में देती है। हर सांसद को 40,000 यूनिट साल का बिजली मुफ्त मिलती है। हमें पानी मुफ्त मिलता है, हमें एयर ट्रैवल फ्री मिलता है, हमें कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस से लेकर इंटरनेट अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, न जाने क्या क्या मिलता है। उसको फ्री भी नहीं कहते। वो फ्री भी नहीं है, वो फ्री भी नहीं लेकिन है। जनता को मिले, जनता को, हर सांसद को, हर मंत्री को 4000 यूनिट बिजली हर महीने फ्री मिलती है, वो फ्री भी नहीं है। मैंने एक आम आदमी को 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी तो सारे बीजेपी वालों को मिर्च लग गई। देखिए, मैं इसको ना, लेट मी लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव। एक इंसान अज्यूम करते हैं कि साल में 100 रुपए कमाता है,
तो 100 रुपए में से वो लगभग 30-32 रुपए इनकम टैक्स भरता है और अराउंड 15 से 20 रुपए वो कंजम्पशन टैक्स यानी कि जीएसटी भरता है। बाल कटवाने से लेकर शर्ट खरीदने तक उसको जीएसटी भरना पड़ता है। यानी कि 100 रुपए की सालाना आमदनी में से 50 रुपए उसका सरकार को एज जीएसटी और इनकम टैक्स के रूप में चला जाता है। इसका मतलब वो 12 महीने में अगर नौकरी कर रहा है तो 6 महीने तो सरकार को पैसा देने के लिए नौकरी कर रहा है। करेक्ट। अब जब सरकार की जेब में वो खजाने में सरकार के वो पैसा डाल रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इन रिटर्न उसे सर्विसेज दे। सर्विसेज कैसे देगी? एजुकेशन, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। जैसा कि अभी बताया, स्लोवाकिया से लेके एस्टोनिया तक सारे देशों में ट्रांसपोर्ट फ्री है। करेक्ट। साउथ अफ्रीका पानी फ्री देता है। यूरोप के ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज हेल्थ केयर फ्री देते हैं। तो these are not रेवड़ीज और these are not freebies. These are actually investment in the human resources of the country. And on the contrary, I mean, you also must look at those who complain कि हम रेवड़ी बांटते हैं। वो अपने राज्यों में क्या करते हैं, अपनी सरकारों से कैसे क्या क्या देते हैं, फ्रॉम अ फर्टिलाइजर सब्सिडी टू फ्री राशन। करेक्ट। वो रेवड़ी नहीं है। हम बिजली पानी देते हैं तो वो रेवड़ी हो जाता है। एंड इनफैक्ट आई टेल यू जैसे अभी सर भी कह रहे थे, पानी का जो सब्सिडी है वो वेल डिजाइंड भी है। 20,000 लीटर के ऊपर 21,000 पे पूरा बिल आता है, राइट? तो जिसका पानी हम बचपन से देखते आए हैं, इतनी एड्स आती थी जी, कमरे से नल का बंद करो, आज तक किसी ने किया नहीं। इतनी एड्स आती थी, मुझे लगता है पब्लिक सर्विस एड्स, कि भाई कमरे से बाहर जा रहे हो तो लाइट ऑफ किया करो। आई डोंट थिंक एनीवन वुड हैव डन इट। बट आज जब 200 यूनिट के ऊपर बिल जीरो नहीं आता तो हर परिवार ध्यान से बिजली यूज करता है। करेक्ट। उनको लगता है कि हम अपनी कंजम्पशन 200 यूनिट से नीचे रखें कि बिल हमारा जीरो आए। सो ये सिर्फ फ्रीबी या सब्सिडी नहीं है, बहुत केयरफुली डिजाइंड पॉलिसीज हैं, ऑल्सो सो दैट कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बने कि हमें बिजली कंजर्व करनी है, हमें इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करनी है। Understood. So they have incentives built into that policy, which then resulted to economic activity. Sir, I'll tell you what exactly is my point of skepticism. When it comes to free electricity, it's great because it is giving a safe house to people. When it comes to Sanjeevani Yojana, where senior citizens are given allowance, that's great because I have a grandmother for whom even 3,000 rupees a month is a very big deal. When it comes to Dr. Ambedkar Samman Scholarship, again a very big deal because it empowers the Dalits. My skepticism lies in policies where we are giving out 1,000 rupees to the women per month for the next 12 months. Because I just did some maths, sir. If there are 22.93 lakh people who fall below the poverty line, assuming 10 lakh women in poverty, on top of the bus subsidy, on top of the electricity subsidy, on top of the water subsidy, if we distribute 1,000 rupees per month, it comes down to 1,200 crores, which is the budget that we can utilize to build 120 schools. We can skill. But it's not either or. हमने कब कहा हम स्कूल नहीं बना रहे? बट सर ये 1,000 रुपीज देने से क्या होगा सर? ये तो थ्योरेटिकल डिस्कशन है। 1,200 करोड़ रुपए से इतने स्कूल बना लो, इतने हॉस्पिटल बना लो, इतने ये बना लो। हम स्कूल भी बना रहे हैं, हम हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, हम महिलाओं को भी खर्चा दे रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बंदे ने कहा, जब हमने फ्री नहीं किया था बस यात्रा महिलाओं की, कहता है मैंने एक महिला को कंडक्टर से 2 रुपए के लिए लड़ते हुए देखा है। तो एक महिला के हाथ में जब 1,000 रुपए महीने में आते हैं, तो जिनके घर का खर्चा नहीं चलता ना, उनसे पूछ के देखो उस 1,000 रुपए की कीमत क्या है। सर हाउ डू वी मेक श्योर दिस मैन? सॉरी। तो जब वो उसका बच्चा आता है, हो सकता है वो बच्चे को दूध नहीं पिला पाते 2 टाइम, उस पैसे से वो बच्चे के लिए फ्रूट्स खरीद सकती है, दूध पिला सकती है उसको, उस बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशियस फूड दे सकती है, उस बच्चे के लिए अच्छी एजुकेशन का इंतज़ाम कर सकती है, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकती है। जो बच्चियां पढ़ नहीं पाती वो अपने लिए बुक्स खरीद सकती हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि एक आपने इतनी सारी चीज़ें सुनी, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट। क्या होता है विमेन एम्पावरमेंट यार? आपके हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट डज अ विमेन एम्पावरमेंट मीन? सर आई थिंक एजुकेशन एंड फ्रीडम, बस, एंड हेल्थ केयर। असली एम्पावरमेंट पैसा होता है, बहुत फाइनेंशियल फ्रीडम। सारा एम्पावरमेंट पैसे में है और कहीं नहीं है, बाकी सब थ्योरेटिकल है। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के चोंचले हैं। असली एम्पावरमेंट पैसा है। एक औरत के हाथ में 1,000 रुपए दे, एक औरत ने बताया, एक टीवी प्रोग्राम में मैं था, सो देयर वर लॉट ऑफ विमेन सिटिंग देयर। वो कहती है अभी पति से छुप छुप के पैसे चुराने पड़ते हैं, और उस चुराए हुए पैसे को कहीं रखती हूँ कि जब
जरूरत पड़े। मुसीबत आएगी परिवार में तो खर्च कर लूंगी। कहती है अब केजरीवाल जी आप जब 2100 रुपये महीना दोगे तो मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है, मेरा पति पूछेगा मैं कह सकती हूँ, मेरे भाई ने भेजे हैं। सर तो आप वो एक औरत का जो एम्पावरमेंट असली पैसे में है यार। एक गरीब और मिडिल क्लास के आदमी के हाथ में पैसा देना ही सबसे बेस्ट इकोनॉमिक्स है। कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी उठा के देख लो आप। एक थ्योरी है ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी कहती है कि अंबानी और अडानी की जेब में ज़्यादा पैसा डालो, जो मोदी जी कर रहे हैं। तो उसमें वो कहते हैं भाई अंबानी की जेब में पैसा जाएगा, अडानी की जेब में पैसा जाएगा, तो वो फिर नई नई इंडस्ट्री लगाएंगे, फिर वो धीरे धीरे बूंद 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 करके नीचे जाएगा। ट्रिकल डाउन थ्योरी। और एक है बॉटम्स अप थ्योरी। आप जब आम आदमी के हाथ में पैसा डाल देते हो तो वो मार्केट में जाके खरीदता है कुछ, तो वो कपड़े खरीदता है, बर्तन खरीदता है, साबुन खरीदता है, रोज़मर्रा की ज़रूरतें खरीदता है। उनकी फिर डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी में। जब इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है तो जॉब्स क्रिएट होते हैं और फिर जीडीपी ग्रो करती है। जब अंबानी और अडानी के हाथ में पैसा जाता है तो वो अपनी वाइफ को बर्थडे के अंदर एक हवाई जहाज गिफ्ट करता है, तो हवाई जहाज की डिमांड बढ़ती है, उससे कुछ नहीं होता। तो आपकी सबसे बेस्ट इकोनॉमिक किसी भी तरह से आप आम आदमी के हाथ में पैसा पहुंचा दो। तो हमने मिनिमम वेज इंक्रीज करके आम लेबर के हाथ में पैसा, मजदूर के हाथ में पैसा पहुंचाया। और महिलाओं के हाथ में, अगर गरीब महिलाओं के हाथ में 1000 रुपए दे रहे हैं, इससे बड़ा और इससे अच्छा इकोनॉमिक डिसीजन नहीं हो सकता। ओके वो मार्केट वो क्या करेगी उस पैसे का? वो मार्केट में जाके कुछ सामान खरीदेगी, घर का सामान खरीदेगी, इसी से इकोनॉमी बढ़ेगी। सर बट डजंट दिस इनकलकेट अ बैड हैबिट ऑफ एक्सपेक्टिंग मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल द टाइम? एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है कि अगर गरीबों को पैसा दे दिया तो ये आलसी हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। अडानी को मोदी जी कितना देते हैं हर साल? आई हैव नो आइडिया सर। जो भी देते हैं वो तो आलसी नहीं हुआ, ये गरीबी आलसी होंगे। हाउ डू वी इंश्योर दैट दिस मनी इज नॉट मिसयूज्ड? मिसयूज How क्या do you होता है? ensure that the money transferred by Modi ji to Adani is not misused? Sir, I have no idea. मिसयूज क्या होता है? Sir, I'll tell you, sir. I'll tell you. एक चीज दो ही चीजें क्या मिसयूज करेगी? पिक्चर दिखाएगी, यही मिसयूज होगा। एक दिन अपने लिए 2 सूट खरीद लेगी, क्या बुरा है यार? ठीक है सर, क्योंकि अभी सर अभी आपने एक चीज बताओ, हाँ। अगर एक गरीब महिला अपने लिए 2 सूट खरीद ले, एक महीने में एक अपने बच्चों के साथ दोनों बच्चों को ले जाके पिक्चर देखा है, कौन सा मिसयूज हो गया यार? थोड़ा सा एंटरटेनमेंट उनको भी जिंदगी में कर लेने दो। तो यू आर सेइंग बेनिफिट ऑफ डाउट? ऑफ कोर्स नहीं दो ही चीजें हो सकती हैं। बेनिफिट एंड वेयर इज डाउट। दो ही चीजें हो सकती हैं इसमें। एक तो इस दुनिया में ऑलमोस्ट सारी इकोनॉमीज में आप देखेंगे तमाम सरकारें अनक्वालिफाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस किसी ना किसी वर्ग को देते हैं। दो ही चीजें हो सकती हैं, एक वो खर्चेंगी उसको, चाहे साड़ी खरीदें, चाहे कोई जरूरत की सामान खरीदे, राशन खरीदे, उससे वो सारा पैसा इकोनॉमी में वापस फ्लो बैक होगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, सारी चीजें बढ़ेगी, इकोनॉमी का चक्का चलेगा। और दूसरी चीज है वो खर्चा ना करे, अज्यूमिंग वो बैंक में रख ले, तो बैंक उसे 6% का ब्याज देगा और बैंक उसके पैसे को 12% पे लोन देकर वो भी इकोनॉमी में फ्लो बैक करेगा। तो यही दो चीजें हो सकती हैं। इन बोथ दिस केसेस आपकी इकोनॉमी का पहिया और तेजी से भागेगा। Got it. Sir, we are also giving out 1 lakh rupees to the rickshaw walas, right, sir? नो वी आर नॉट। वो 1 लाख रुपए For the wedding of their daughters. हाँ, डॉटर की वेडिंग में यार क्या दिक्कत है? Sir, I have no idea how that makes sense, sir. I'm so sorry. Can you please explain? तो उसकी बेटी की शादी जब होती है, बेटी की शादी में खर्चा होता है। अभी हम ऑलरेडी दिल्ली सरकार की स्कीम है, सभी सरकारों की स्कीम है कि गरीबों की बेटियों की शादी में 20-20 हज़ार रुपये अभी हम देते हैं। तो अगर 1 लाख रुपए उसकी बेटी की शादी में कंट्रीब्यूट कर दिया, शादी में आप जानते हैं, मतलब कहने को जो मर्जी कर लो, शादी सिंपल होनी चाहिए। मुझे नहीं पता आप शादीशुदा हो और आपकी शादी में कितना खर्च अभी भी हुआ सर मेरा, अभी हुआ तो काफी खर्च किया होगा, काफी हुआ सर, है ना? तो जब आपकी शादी में इतना हो तो उसको 1 लाख रुपए खर्च कर। Sir, but it's not earned money, sir. Sir, by that logic, we should just be sponsoring everything to the. No, not everything. We are not sponsoring everything. It's just that's exactly what I'm saying. Trying to say. थोड़ा सा सरकार होती किस लिए है? To take care of the people. To care of the people.
Now how do we take care of the people? These are different ways in which we take care of the people. Okay. शादी में जब वो शादी करता है, शादी में उसके खर्चे होते हैं, वो लोन उठाता है फिर जगह जगह से। आप कई जगह लोन भी तो माफ़ करते हो ना लोगों के। तो अगर हम उसको एक ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं, उसे लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको क्या दिक्कत है? आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन दैट। Are you sure, sir? आई एम श्योर। Sir, but why only just rickshaw walas? Why not everybody then? All people at the bottom of the pyramid. अभी तो आप रिक्शे वाले को ही नहीं देने दे रहे। But sir, जब why सबको दे specifically the देंगे rickshaw तो wala, sir? करेंगे धीरे धीरे। सबको मिल रही है अभी 20,000 रुपए मिल रही है। 20,000 But what is so special about this category of rickshaw walas that we're giving them 1 lakh rupees, sir? इनके साथ बातचीत चल रही थी, so it was decided, they demanded it, we announced it. भविष्य में देखते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, maybe we'll do it for everyone. Because sir, there are poorer sections of the society also, like the people who clean our drains also. Their situation is even worse. And like you mentioned that. So as I said, this was उनके साथ बातचीत चल रही थी, उनके साथ डायलॉग चल रहा था. They demanded this, it was announced. Okay. So भविष्य में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब sections के लिए हो जाएगा. Sir, again, this is from the economic standpoint only. Why are we giving this? Why are we giving 18,000 rupees to the pujaris and the Maulvis, sir? एक सरकार जितना पैसा कमाती है, अज्यूमिंग उसका 20-30% वो सैलरीज, पेंशन्स और अपना जो सेक्रेटेरिएट और मंत्रालय चलाने का खर्चा होता है उसमें खर्च कर देते हैं। जो बैलेंस पैसा बचता है उस पैसे से वो जनता का भला करती है। अ पार्ट ऑफ दैट गोज इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सड़कें बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, जैसा कि बताया गया, वाटर पाइपलाइंस बिछाई गई, सुएज पाइपलाइंस बिछाई गई, एटसेट्रा। और बहुत सारा पैसा वेलफेयर के तौर पे सरकार जनता की जेब में डालती है। उसके कई सारे तरीके हैं। ऑटो ड्राइवर ने जब अपनी बेटी की शादी करनी है तो उसको 1 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी। बाय द वे, देयर आर सेवरल गवर्नमेंट्स इन दिस कंट्री हु गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस एट द टाइम ऑफ डॉटर्स मैरिज। ममता बनर्जी जी की सरकार बंगाल में देती है, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार देती है। Similarly, there are sections of the society that are identified to whom some money is given in their pocket through which either they benefit the society। आप जैसे अब आप पुजारी की बात कर रहे हैं तो वो अपने खर्चे में, मंदिर को चलाने के खर्चे में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे को ऑगमेंट करने पे खर्चा करेंगे और कुछ पैसा अपनी जेब में रखेंगे, अपने परिवार पे खर्च करेंगे, अपने बच्चों पे खर्च करेंगे। उन्होंने अपना जीवन समाज को, धर्म को सौंप दिया तो उनकी जेब में थोड़ी सी पैसा डालकर एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का एक प्रयास है। तो मुझे लगता है इस देश में और तमाम इकोनॉमीज में कई सारे मॉडल्स हैं फाइनेंशियली एम्पावर करने के, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के उन लोगों को जिनको जरूरत है इस पैसे की। दिस इज जस्ट वन ऑफ द सेवरल वेज ऑफ डूइंग इट। And I'm so sorry to say this, but it doesn't make any sense. Like, how do we ensure that they are really servicing the society? You might be an atheist. I'm not an atheist, sir. My family is extremely religious. I'm an agnostic. I believe in things when I see them happen, and I've seen these things happen very practically, very often, very frequently across the There are a large country. number of people in this country who are religious minded, like your mother. Likewise, I would say more than 95% of this country is like your mother, and they support this. Okay. But they will all, अब कुछ भी announce करो, there will always be a certain section of the society which will be against it. Got it, sir. So I think हमने 95% लोगों के हिसाब से announcement किया. और जो भगवान की सेवा कर रहा है हम उसकी सेवा कर रहे हैं। सर सब लोग तो नहीं कर रहे हैं सर, बट ठीक है। देखिए, ये इस बात को आप समझिए। आपने कहा कि हो सकता है उसमें से कुछ मिसयूज करें या वो गलत काम करते हैं। मान लीजिए 10% उनमें से गलत काम भी करते हैं, बट हम 90% लोगों को उस 10% के मिसयूज और फ्रॉड की वजह से डिप्राइव नहीं कर सकते। ओके। जैसे अगर आप पुजारियों को देखिए या ग्रंथियों वगैरह को देखिए, आप लोगों की जिंदगी में मतलब बिलीफ और फेथ का बहुत बड़ा स्थान होता है, राइट? सुख दुख के समय पे यही पुजारी, यही पंडित, यही ग्रंथी हमारे साथ खड़े होते हैं। हो सकता है कि कुछ तरह के मॉडर्न आउटलुक वाले लोग, उनको लगता है कि शायद हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपके परिवार का कोई गुजर जाता है ना, तो जो पंडित वहाँ पे खड़े होके अंतिम संस्कार कर रहा होता है, जो 13 दिन आके घर में आपके रिचुअल्स करता है, वो आपके लिए बहुत बड़ी इमोशनल सपोर्ट है। बट पैसे भी लेता ना मैम उसके लिए। मैं बताता फॉर हूँ एवरी सर्विस दैट दे डिलीवर। ऐसे कुछ पंडित और ऐसे कुछ ब्राह्मण हो सकते हैं who are pretty well off, और जब भी हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं हमारे सामने उन्हीं की शक्ल आती है। बट बिलीव मी, 80 to 90% पुजारी हैंड टू माउथ जीते हैं। आपके घर में शादी है, आपके घर में मौत हो गई, बर्थडे है, कोई भी वो है,
आप उस पुजारी के हाथ में जो भी रख देते हैं, आज तक कभी किसी पुजारी ने आपको कहा कि दक्षिणा कम दी भाई साहब आपने? कहा तो है सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरे को कभी नहीं कहा। मैं आज तक कभी ऐसे पुजारी से, पंडित से, ब्राह्मण से नहीं मिला। उसके हाथ में आप 11 रुपये रख दो, उसके हाथ में 101 रुपये रख दो, उसके हाथ में 1100 रुपये रख दो या 11,000 रुपये रख दो, जो मर्जी आप उसके हाथ में रख दो, वो आपको आशीर्वाद दे के घर चला जाता है। आप उनके प्रोफेशन से सहमत हो सकते हैं अगर आप रिलीजियस हैं, असहमत हो सकते हैं अगर आप एग्नोस्टिक हैं या एथिस्ट हैं, लेकिन वो भी समाज की एक नीड को पूरा कर रहे हैं। तो वो समाज की जब ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, समाज के साथ खड़े हैं, तो समाज की जिम्मेदारी है। Sir, but even a guitarist who's playing guitar at the railway station is making life pleasant for the people over there. ऐसे लोगों का मैं उनको गिटारिस्ट में, तो आपने उसको गिटारिस्ट शब्द यूज़ किया, मैं आई वुड से सपोज बेगर्स हैं, लेट्स ब्रिंग एवरीवन इन दैट कैटेगरी। अभी हम लोग स्पेशली देखिए, सारी चीज़ें तो अभी 10 साल ही हुए हैं हमारे को सरकार बनाए हुए, और वो भी हाफ स्टेट में सरकार है और एक हमारी पंजाब में सरकार है। सारी चीज़ें हम 2 दिन में पूरी नहीं कर सकते। लेकिन बेगर्स, बच्चों के लिए खासकर, जो बच्चे आपको ट्रैफिक लाइट पे कार पे नॉक नॉक करते हैं और बलून बेचने की कोशिश करते हैं, उनको देख के बहुत दर्द होता है दिल में कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी हम इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए। अब हमने अनाउंस किया है कि उन बच्चों के लिए हम रेजिडेंशियल स्कूल्स खोलेंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। वो बच्चे बहुत नशे में डूबे होते हैं। उन लोगों को सही रास्ते पे लाना इज़ नॉट जस्ट स्पेंडिंग सम मनी ऑन देम, इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी क्वाइट अ लेबोरियस टास्क। लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम उनके लिए कई सारे रेजिडेंशियल स्कूल्स खोलेंगे, जहाँ इन सारे बच्चों को ट्रैफिक लाइट से उठा के हम उन स्कूल्स में डाल के उनको अच्छी एजुकेशन दे के मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे। हमारी ये कोशिश रहती है कि वी फाइंड अ वे टू मेक देयर लाइफ better and easier and more dignified. Ma'am, because you have a revenue surplus, all of this makes complete sense. I'm just imagining a state when, if there is a deficit, of course your state is far away from deficit, but if other states get inspired from all of these things and they start identifying the segments where they don't run an economically viable profession, they are bound to go out of business today or tomorrow, whether that's a pujari or a guitarist or even the sound recordist over here. If these people tomorrow stop making money because the industry is evolving, the government cannot come down and give them pocket money because it's just not viable for the state. हुआ है हिस्ट्री में, जब जब डिप्रेशन आता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, जब कोई पूरा का पूरा इकोनॉमिक सेगमेंट बैठ जाता है, सरकार डोल्स देती है। सरकार होती किस लिए है यार? सरकार डोल्स देती है, सरकार इकोनॉमिक सपोर्ट देती है अपने लोगों को, सरकार सीधे कैश ट्रांसफ़र करती है लोगों को। कोरोना के टाइम में पूरे देश में हमारी अकेली सरकार थी जिसने ऑटो वालों को, टैक्सी वालों को, लेबर को 5-5 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में डलवाए थे। उसके अलावा यूएसए में हमने सुना, यूएसए में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू एवरी यूएस सिटीजन। Yeah, but that was temporary ना सर, उसके बाद तो they decreased it, right? हाँ, तो जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब दिया जाता है। Yeah. सरकारें होती इसलिए हैं। बट सर ये जो लॉजिक जो था ना कि इकोनॉमिकली अनवाइबल प्रोफेशन है, जैसे पुजारी हो गया, इफ दैट लॉजिक इज अप्लाइड टू एवरी सिंगल प्रोफेशन दैट इज एग्जिस्टिंग इन दिल्ली राइट नाउ एंड द गवर्नमेंट बिगिंस टू फंड इट, सो लेट्स नॉट जनरलाइज एवरीथिंग, वी आर नॉट डूइंग इट ना। तो अभी तो हम जितना पॉसिबल है, जो सेगमेंट है उसके लिए कर रहे हैं। नहीं, और भारत सरकार और अन्य सरकारें भी अपने अपने हिसाब से वेलफेयर करने की कोशिशें तो करती रहती हैं। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में सरकार मनरेगा को पैसा देती है, फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है, गैस सिलेंडर बहुत लंबे समय तक दिए, 80 लाख लोगों को राशन देती है। करेक्ट। अब आप कहेंगे कि ये भी फ्री भी है? नहीं सर, वो नहीं है फ्री भी। तो और ये फ्री भी है जो हम दे रहे हैं? नहीं सर, मैं सर लाइक आई सेड, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल ऑफ इट, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस सर, बिकॉज मैंने देखा है इसका बेनिफिट। इनफैक्ट लाइक आई सेड, व्हेन आई स्पोक टू पीपल, दे टोल्ड मी दैट देयर लाइव्स हैव इंप्रूव्ड बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर, बिकॉज ऑफ एजुकेशन। एक बार ये पुजारी वाला शुरू हो जाए, यू शुड टॉक टू 100 पुजारीज। Done sir, I will They will definitely say that their life has improved. Done sir, I will definitely do that, but like an agnost, I will go and see the evidence and I'll definitely let you know sir. नहीं, they will definitely say उनकी लाइफ इम्प्रूव हुई है। उनकी वजह से दूसरों की लाइफ कितनी इम्प्रूव हुई है, ये तो फिर रिलीजियस। बिकॉज सर मेरा मायोपिक व्यू ये देखता है कि मैंने अपसेलिंग सर्विसेज देखे हैं पुजारी से कि आप 1000 रुपये कर दो, 2000 रुपये कर दो, आप भगवान के पास चले जाओगे, ऐसा कर दोगे, वैसा कर दोगे, स्वर्ग का ये द्वार खुल जाएगा। मैं उसमें सब में नहीं जा रहा। ये लोगों का पर्सनल फेथ है, लोगों की पर्सनल बिलीफ्स है।
कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ लोग वो मानते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू दैट. I am only on the fact that they are providing some service to the society, and that service has a huge demand in the society. Got it. आज ये नहीं रहेंगे, कोई और आ जाएगा. इस डिमांड को तो पूरा करना ही है, because there is a demand in the society. So if there is a demand in the society and they are fulfilling that demand, then they be better compensated. Because I was of the opinion that if they're fulfilling that demand, the economics will reward them for fulfilling that demand. Because it's not really a commercial activity. There is no price to it. जैसे मैंने कहा कि किसी के घर अगर पूजा कराने गए दिवाली पे, उसने 11 रुपए दिए, वो ये नहीं कहता कि मेरी इस पूजा के इतने पैसे हैं. उसका प्राइस टैग नहीं है. It depends on the donation. Got it. ठीक है सर. So now I want to talk about education, sir. And I am so excited to talk about this because we started Think School and हमारा tagline ये बोलता है that we want to put a dent in the Indian education system of India. And I am a product of a failed education system. मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है and thank God I'm not building buildings. Otherwise buildings खड़ी नहीं होती. मेरा जो फोटो था वो अखबार में छपता. देखो गणेश प्रसाद ने बिल्डिंग बनाया और गिर गया. बट जब मैंने कैब ड्राइवर से बात किया, जब मैंने रिक्शा ड्राइवर से बात किया, उन्होंने हमको बताया कि because schools have seen remarkable transformation in the infrastructure, their lives have remarkably changed, because of which now they are confident that their children are going to a good school. Some people are saying that teachers have become complacent, but I want to take that case off. The very fact, the hard work, which is about changing the infrastructure of the school, that has been done by your government, which is commendable. So I want to understand from you, ma'am, because when I was speaking to Vijay, he told me that you headed this initiative and you made sure that there were systems which were inculcated in such a way that in the long run, these schools will have infrastructure which will always be updated to the modern time. So how did you make this happen and what was the situation before, ma'am? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि किसी भी सरकार की क्या प्रायोरिटी है, ये इस बात से दिखता है कि वो सरकार अपना पैसा कहाँ पे लगाती है. राइट. जब 2015 में सर जब चीफ मिनिस्टर बने, जो पहला बजट प्रेजेंट हुआ दिल्ली असेंबली में, उससे पहले एजुकेशन का बजट दिल्ली सरकार का 5,000 करोड़ का होता था. Okay. एक शॉट में वो डबल करके 10,000 करोड़ कर दिया इन अ सिंगल शॉट. दिल्ली बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने 25% अपने बजट का एजुकेशन में लगाया है. Correct. और लगातार 10 साल से लगाती आ रही है. राइट. तो सबसे पहले तो ये था कि कोई भी ये चीज करने के लिए, मैम एक सेकंड, आपने 25% लगाया ना, बाकी स्टेट्स का कंपैरिजन दीजिए ताकि ऑडियंस को समझ में आए कि कितनी बड़ी बात है. 3%, 4%. Can you give me some examples? 5%. Maximum. नेशनल लेवल पे शायद 2%. National level पे भी it's less than 5%. नहीं. Center is less than 2%. Center is less than 2%, and we've done 25%. 25% of the annual budget. Ma'am, what happened because of this 25% budget allocation? देखिए, सबसे पहली जो चीज हुई, मुझे याद है अभी भी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी स्कूलों का बहुत बुरे हाल में था. मुझे अभी भी याद है जब 2015 में मनीष जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, मैं उनकी एडवाइजर थी. हम लोग जो स्कूलों में जाते थे ना, आप स्कूल के अंदर घुसिए, सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी. ऐसे होते थे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल. और जिस टॉयलेट की बदबू 100 मीटर दूर आ रही होती थी ना, उसके बाहर कॉरिडोर में बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ रहे होते थे. क्यों? क्योंकि क्लासरूम्स की कमी थी. क्लास में डेस्क नहीं होता था, स्कूल में पीने का पानी नहीं होता था, साफ टॉयलेट नहीं होते थे, सफाई कर्मचारी नहीं होते थे, कोई डेस्क नहीं थे, कोई दीवारें टूटी हुई थी, छत चूरी थी. Like a classic government school. Government school बोलती मेरे दिमाग में यही आता है जो भी आपने अभी डिस्क्राइब किया. Then what did you do different to build a system to change this, ma'am? देखिए, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ. जैन साहब PWD मिनिस्टर थे उस समय. ऐसी वॉर फुटिंग पे PWD ने कमरे बनाए. अगर आप 1947 to 2015 देखिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 24,000 कमरे बने इन द 65 years. 2015 to 2025 हमने 22,700 कमरे बना लिए within 10 years. That's amazing. So the speed at which infrastructure was built, और मैं ये मानती हूँ, और उसमें जैन साहब का मैं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानती हूँ, कि ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना. अच्छा, मुझे भी शुरू में लगता था कि भाई ऐसी क्या ज़रूरत है ग्रेनाइट लगाने की, ऐसी क्या ज़रूरत है स्टेनलेस स्टील की हमें रेलिंग्स लगाने की. लेकिन आज अगर आप स्कूलों में जाइए, जो इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बना है,
जब सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, अपना कॉलर उठा के जाते हैं, अपना सीना Aspiration. चौड़ा करके जाते हैं। एक ही चीज से मैं बता, शील कंटिन्यू। 2015 में सरकार बनी, एक स्कूल में हम लोग गए, एक बच्चे से पूछा, हमने कहा भाई आप तो देश का भविष्य हैं। उस बच्चे ने कहा नहीं सर, मैं देश का भविष्य नहीं हूँ, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूल वाले हैं। अच्छा। हाँ। Yes. आज 7 साल बाद जब उसी स्कूल में गए, वही बच्चा मिला, कहता सर। देखो very sweet. मैं ना सरस्वती विहार में रहता हूँ, हमारे साथ में पीडब्ल्यूडी ने, दिल्ली सरकार ने एक स्कूल बनाया था। हमारी सरकार बनी तो स्कूल को तोड़ के दोबारा बनाना पड़ा आफ्टर 20। सारे स्कूलों को दोबारा बनाया, बाय द वे। तोड़ना पड़ा। जितने स्कूल थे सारी बिल्डिंग्स को तोड़ के सारी बिल्डिंग्स को दोबारा बनाया गया है, एंड दैट इज द रीजन वी हैव वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स टुडे। आज हमारे स्कूलों के अंदर ना ऑडिटोरियम देखिएगा, प्राइवेट स्कूलों से कहीं बेटर है। एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, स्विमिंग पूल बनाए, लिफ्ट्स। अगर 3-4 मंजिली स्कूल है तो लिफ्ट लगी हुई है स्कूलों के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। Sir, was this a question of just intent, or could any government have done this? इंटेंट, That's it. नीयत। नीयत के सवाल है, बाकी और कोई सवाल नहीं है। द ईजियर पार्ट वाज टू इन्वेस्ट। मतलब जब शुरू में हुआ था तो हमने पहले साल में कहा कि सारे टॉयलेट ठीक कराओ, 4-5 चीज़ों पे जोर दिया, सफाई, टॉयलेट, बाउंड्री, पीने का स्कूल पानी, की बाउंड्री, पीने का पानी, पीने का पानी, ये 4-5 चीज़ों की हमने Blackboard. सारे ब्लैक बोर्ड, ये सारे स्कूलों के अंदर एक साथ पहले साल में हमने किया। बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट। फिर स्कूलों की बिल्डिंग्स तोड़ के बनानी चालू की। लेकिन लोग अपने बच्चों को अच्छी बिल्डिंग के लिए स्कूल में थोड़ी भेजते हैं, रिजल्ट्स के लिए भेजते हैं। फिर हमने सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को अब्रॉड भेजा ट्रेनिंग के लिए। फिनलैंड भेजा था ना सर? फिनलैंड भेजा, सिंगापुर भेजा, कैम्ब्रिज भेजा, IIM अहमदाबाद, हमारे हजारों टीचर्स को हमने IIMs में भेजा। क्या हुआ सर उसके बाद? When the teachers came back, what was the change in their मैं perspective? आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हमारा एक बैच ऑफ प्रिंसिपल्स IIM अहमदाबाद गया था। सो वंस दे केम बैक, तो मैं उनमें से कुछ के साथ बैठी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि कैसा रहा, क्या अच्छा लगा। आई विल नेवर फॉरगेट दैट कॉन्वर्सेशन। उस प्रिंसिपल ने 2 चीज़ें कही। उसने कहा कि IIM अहमदाबाद में हम जब गए, कहते वहाँ पे हर क्लास बिल्कुल डॉट टाइम पे शुरू होती थी, राइट। उसने एक दूसरी चीज़ कही, उसने कहा कि वहाँ के डायरेक्टर ने भी आके हमारी एक क्लास दी थी और सारे उनके सीनियर प्रोफेसर्स ने पढ़ाया। ही सेड दैट वो इतनी तैयारी करके आते थे क्लास के लिए, चाहे वो एक लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो या IIM अहमदाबाद का डायरेक्टर हो। आप इस बात को समझिए, जब वो 2 चीज़ें पॉइंट आउट कर रहा है, पहली बार एक दिल्ली के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन का इथॉस देखने का मौका मिला। पहले उन्होंने देखा ही नहीं था। पहले उन्होंने देखा ही नहीं था कि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन क्या होता है, उसका माहौल क्या होता है, उसका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्या करता है, उसके टीचर्स क्या करते हैं। तो IIM अहमदाबाद में वो लीडरशिप ट्रेनिंग तो लेके आए, सिंगापुर में वो लीडरशिप ट्रेनिंग, कैम्ब्रिज में वो लीडरशिप ट्रेनिंग तो लेके आए, पर पहली बार उनको एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन देखने का मौका मिला। उनको लगा कि भाई मुझे अपना स्कूल यहाँ पे पहुँचाना है। वरना वो यही देखते थे, मेरे बगल का सरकारी स्कूल भी टूटा हुआ है, इस तरफ भी टूटा हुआ है, यहाँ से भी बच्चे छुट्टी होने से पहले भाग जाते हैं, यहाँ से टीचर ट्रेन पकड़ने के लिए भाग जाते हैं। तो बेंचमार्क चेंज हो गया उनका। बेंचमार्क उनके चेंज हो गए। गॉट इट। दूसरा मैं ये भी देखती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हमने करी वो रॉकेट साइंस नहीं थी, वो बहुत सिंपल चीज़ें थी। अब जैसे स्कूलों में सफाई नहीं है, या आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे कोई सफाई के लिए लगाना है, आपको उनको मटेरियल देना है कि भाई जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से इतनी सफाई होनी चाहिए, और सफाई नहीं हो तो उसके हिसाब से पेनल्टीज होनी होगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट किसी ने उससे पहले अपना माइंड ही नहीं अप्लाई किया। नियत ही नहीं थी, एजुकेशन प्रायोरिटी ही नहीं थी। सर इतना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब हमने शुरू में ये बात हुई कि साफ सफाई करनी है, तो हम एक नए सैनिटेशन कॉन्ट्रैक्ट को लाने के प्रोसेस में थे। तो तब हम बड़ी चर्चा करते थे कि भाई इतने बच्चे हैं तो इतने सफाई कर्मचारी चाहिए, और आपको इतना हार्पिक चाहिए, और आपको इतना साबुन चाहिए। आई रिमेंबर वंस टेलिंग मनीष जी, मुझे कई बार लगता है मैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट में काम करती हूँ रादर देन एजुकेशन डिपार्टमेंट। लेकिन जब स्कूल साफ होते हैं ना, even before the infrastructure change, when the schools started getting cleaner, that was also signaling of intent. कि पेरेंट्स आके कहते थे कि क्या हुआ जी, शुरू में 1 साल में तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदला, लेकिन 1 साल में शुरू में स्कूलों में सफाई हो गई,
वहां पे पीने का पानी आ गया, वहां पे क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड आ गए, टॉयलेट साफ हो गए। टॉयलेट साफ हो गए। तो ऑल ऑफ अ सडन बच्चों को भी लगने लगा, पेरेंट्स को भी लगने लगा कि भाई स्कूल सिस्टम सीरियस है। करेक्ट। टीचर्स को भी लगने लगा कि भाई सरकार इन बच्चों के बारे में कुछ चिंता कर रही है। तो टीचर्स को भी ये मैसेज जाता है कि भाई द गवर्नमेंट इज सीरियस, गवर्नमेंट की नीयत है कि इन बच्चों को अच्छा माहौल दिया जाए और उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई दी जाए। मैं इनफैक्ट एक स्कूल में गया, इंटेंट को फर्दर डिफाइन करिए। द इन्वेस्टमेंट बाय आवर गवर्नमेंट इन एजुकेशन वाज नॉट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, द इन्वेस्टमेंट was in the first year, first budget. was in the first budget. The investment in education by our government was for the next generation, not for the next election, which is the most That's critical most aspect. important. Correct. Because every party would just optimize for the next election if they wanted to do this just for politics. Ma'am, in fact, just to validate your statement, I in fact went to a school in Kiran Vihar. This was day before yesterday. In Delhi. तो जब sorry sir? In Delhi. In Delhi. तो जब किरण विहार के स्कूल में मैं गया था, वहाँ पे I saw that there were CCTV cameras which were crystal clear. And when I spoke to the principal over there, he said that CCTV camera is a luxury and I can monitor all the classrooms from here. He said that with pride. So I was just thinking to myself as to why is this CCTV camera such a big deal? And when I went back to my school days, I realized that even in a private school back then, CCTV cameras weren't there. So there was no way to monitor if there is something bad that's happening in a particular classroom or not. But now there is such a big safety net that especially when there are rising cases of sexual harassment, once there is CCTV camera that is installed, there is at least some deterrence that something like this cannot happen. You can check if what exactly is the teacher doing in the classroom when there is CCTV camera. In fact, when I spoke to him, in fact, जब मैं गया था मैम स्कूल में, स्कूल बहुत ही साफ था. So I would say, हाँ मैं बिना बताया गया था. तो हमने बोला था कि हम केजरीवाल सर से मिलने जा रहे हैं, तो हम आपके स्कूल का असेसमेंट करने को आए. तो हमको लगा कि चलो प्रिंसिपल मान जाएगा. उन्होंने बोला कि आपके पास नोटिस है कि नहीं है. तो हमने बोला नोटिस नहीं है, बट हम आपको ईमेल दिखा देंगे. बट हमने बोला कि सर बता दो ना सर क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, हम सच में उनसे मिलने जा रहे हैं, तो मिलने के बाद ही हम फोटो दिखा सकते हैं आपको, तो प्लीज़ हमको बताइए. तो उन्होंने हमको बताया कि इंप्रूवमेंट तो काफ़ी सारी हुई है, हमारे पर फिर भी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है कि हम बहुत सारी चीज़ें कर नहीं पाते हैं, बट पहले से हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि हम लर्न करें और बच्चों को सिखाएं. सर एक एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन वाला क्वेश्चन पूछ लूँ मैं. Are we teaching our teachers how to use ChatGPT and teach students how to use ChatGPT? वो शायद अभी नहीं है. वो अभी नहीं है, पर मैं आपको बात बताऊं, लोग खुद ही सीख जाते हैं. टीचर्स को हम सिखाएं ना सिखाएं, बच्चे तो 100% सीख जाते हैं. मैम यहाँ पे एक्चुअली मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ. इनफैक्ट द फ्रेंड जिसके घर पे मैं रुका हूँ, हिज नेम इज अंश मेहरा. ही रन्स अ स्कूल कॉल द कटिंग एज स्कूल, और वो बड़ी बड़ी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स बनाता है हाउ टू यूज ChatGPT. आई विल गेट हिम टू मेक अ स्पेशल वीडियो फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर टीचर्स. वो 1 घंटे का 1.5 घंटे का वीडियो होगा. इफ यू कुड जस्ट सर्कुलेट दैट इन schools and make it mandatory for them to watch it, that would make a huge difference. Because sir, ChatGPT is such a wonderful thing. Every phone that has WhatsApp now can use ChatGPT. You can literally speak to ChatGPT and understand every single physics concept, chemistry concept. और जब मैं IIT JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, सक्सीड नहीं हुआ, लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब आई रोडो करके फिजिक्स का बुक था, और उसका जो सोल्यूशन भी मिलता नहीं था. उसका शायद कोई रशियन ऑथर था, और HC वर्मा था जिसका भी सोल्यूशन मिलता नहीं था, उसको अलग से खरीदना पड़ता था. बट आज इतना मैजिकल लगता है कि आप उसी क्वेश्चन को डाल दो ChatGPT में, वो आपको एक्सप्लेन भी करेगा, आप उसको क्वेश्चन पूछते रह सकते हो और वो आपको जवाब देता रहेगा. And to a large extent it's free, so any kid or any teacher can use that in such a way that they can empower the kid to study even without the teacher, even without the availability of the teacher, which is a great thing. So I will definitely do that. We would be happy. It would be great if you could just circulate that. Ma'am, the last question that I have is about landfills. Sir, मेरी एक friend है KK Create. उन्होंने recently she went to the landfills of Delhi, and unfortunately she received such a cold response that she was even beaten by some people over there. While she went to that landfill, and she actually investigated. बीट कोई पता नहीं कौन लोग थे. Sir, I'll talk to her and I'll let you know about this. So जब when we saw that video, we saw that people in landfills live in such disastrous conditions. And I checked. In fact, I'm a civil engineer. Like I said, a failed civil engineer. But जितनी मैंने पढ़ाई करी है, मुझे पता है कि it's a very mammoth problem. Like even if you want to solve it today, even if you allocate thousands of crores of budget to it, you can't solve it today. No, it is doable. It is only because of some bureaucratic reasons that it is pending. Can you help me explain that, sir? Can you help me understand this, sir? हमने जब हमारी 2 साल पहले नगर निगम में MCD में हमारी सरकार बनी थी, हमने आते ही उसके कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए थे, और उसका वो लैंडफिल साइट को ख़त्म करने का काम शुरू हो गया था. Okay.
वो कॉन्ट्रैक्ट्स 1 साल के थे या 1.5 साल के थे, आई डोंट रिमेम्बर द पीरियड, बायो माइनिंग के। बायो माइनिंग के। ओके और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट्स का पीरियड ख़त्म हो गया, दे हैड टू बी एक्सटेंडेड, वो एक्सटेंड नहीं हो पाए ओके क्यों बिकॉज सर? वो नगर निगम में एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, ओके वो स्टैंडिंग कमेटी ही सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियली अप्रूवल देती है। ओके वो स्टैंडिंग कमेटी 2 साल हो गए अभी तक बन नहीं पाई बिकॉज देर इज़ अ केस गोइंग ऑन इन सुप्रीम कोर्ट अबाउट इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, Complicated. वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी। सो वो सुप्रीम कोर्ट में स्टैंडिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसी की वजह से कोई भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम दिल्ली के नगर निगम में पास नहीं हो पा रहे हैं। दिस इज़ अ हाई कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो वो कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज उसमें हमने अंदाज़ा लगाया था 2.5 से 3 साल के अंदर सारे साफ़ हो जाते हैं, तो अभी तक वो साफ़ हो गया होता। इट इज़ जस्ट दैट ये ब्यूरोक्रेटिक इसके जैसे वो स्टैंडिंग कमेटी कंस्टिट्यूट होगी मुझे लगता है 1.5-2 साल के अंदर साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि सर इसलिए डेडलाइन ये आगे बढ़ता जा रहा है क्या? बिकॉज अर्लियर वाज 2017, नाउ इट्स 2028। 2017 में तो हमारी सरकार नहीं थी, हमारी सरकार बनी 2022 दिसंबर में, 2022 दिसंबर में बनी थी। हम 2024 के उसमें हैं, 2 साल हुए हैं। 2 साल में हम इसको साफ कर देते अगर स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई होती तो। गॉट इट। सो नाउ सर इसका कोई एस्टिमेट टाइम है कि नहीं सर? क्या ये चलता भी रह सकता है? स्टैंडिंग कमेटी जैसी बनेगी उसके 2 साल में बन जाएगा। सर ये जो माउंटेन जो है इसको हम क्लियर कर सकते हैं, दैट इज क्वाइट प्रैक्टिकल, बट इवन नाउ व्हेन द इनकमिंग वेस्ट इज कमिंग आउट स्टिल सेग्रीगेशन इज नॉट हैपनिंग इन एवरी सिंगल हाउस। वो अब सारे इनका डे टू डे बेसिस पे सफिशिएंट कैपेसिटी इज बीइंग क्रिएटेड इन दिल्ली कि इस रोज का कूड़ा जो है वो रोज इंक्यूबेशन उसमें चला जाएगा और वहाँ पे वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के अंदर चला जाएगा और वहाँ पे वो एनर्जी में कन्वर्ट हो इट विल आल्सो बिकम इकोनॉमिकली वायबल सर? या Got it. Sir, which does that also indicate that there is a large business opportunity in this space for waste management? यस Got it. Thank you so much, sir. Those are all my questions. We still have one section left, but then I'll cut you some slack. But thank you so much for spending so much time with me, sir. It was Thank a you so pleasure much talking to for you. being so cooperative with all my rebuttal, sir. It's a little over midnight now. Yeah, little over midnight. But Thank you can see, you can see how excited we all are by this conversation. I'm very thrilled to see this, sir. And you know what I really appreciate is that every time every time I put out a rebuttal, it's not like you're being defensive. You actually explained it to me, which is why it makes sense. So regardless of whether I agree or disagree, I understand your perspective, where you're coming from, which is more important. So thank you so much, sir, for doing all this. Thank really you. means a lot. Thank you so Thank much. you. I hope you had a Thank wonderful you. time. यस We did. Thank you so much. Thank Thank you. you.